IIFL, Angel, Bajaj, and ICICI. Our next panelist, Mr. B. Gauri Shankar, is the regional head, BD South, the National Stock Exchange of India. He holds a master's degree in business administration in international business. He has more than 15 years of experience in capital markets and has worked in various roles at the NSE. His specialties include listed derivatives, business development, new product designing. In his current role, he spearheads the business development of all exchange products, educational initiatives, and SME listings in the southern region. Our third panelist, Mr. Hitesh Sethia, a passionate coach, an entrepreneur, and a mentor with an exemplary experience of more than 15 years in the field of finance and management. He has been directing few projects and consulting exercise for Indian and global stock, commodity, and currency market participants, including exchanges, regulators, and other market intermediaries. He has conducted programs for the Ministry of Finance, Securities and Exchange Board of India, the Forward Market Commission's Economic Offences Wing, the Central Bureau of Investigation, the Enforcement Directorate officials on financial intelligence and manipulative practices in financial and commodity markets. He has been a regular speaker at all the exchanges offering stocks, commodities, and currency trading. He has conducted international training programs for the Global Board of Trade, Mauritius, Singapore Mercantile Exchange, Singapore, and the Strathmore University in Nairobi. A fourth panelist is Ms. Pooja S. Lad. She is the senior manager at PMT Bullion. With more than 13 years of experience in the commodity sector, is responsible for product development, product enhancement, product awareness, supporting the team and interacting with bullion-related trade associations and bodies pan-India and regulators. Prior to joining the product team, was a part of the institutional team in MCX to promote commodities, trading, and MCX in the institutional arena and national level brokers. A graduate in commerce and MBA from the Mumbai University. Prior to joining MCX, she was also associated with Bennett and Coleman. We have with us our own Mr. Nitin Khandelwal. Nitinji was immediate past chairman of the GJC. He is an authority in our industry. We call him an institution of his own kind. If there is not a single subject he cannot speak on, we have invited him for every single webinar, and he has been able to fill in the blanks or sometimes take up charge as a moderator. And I don't know, I don't even have a really perfect profile to describe him, because I can actually speak about him for an hour or so, if given the opportunity. We have with us the moderator, Mr. Ashish Pethe, who is a partner at Vamanari Pethe Jewelers, one of the most trusted and renowned retail chain in the Western India, established way back in 1909 and spread across 3 states, 26 stores with a staff of almost 900. Actively involved with various trade bodies. He is the zonal chairman of GJC. He's also the convener of the hallmarking committee. He's a director at IBJA. He's a qualified electrical engineer from VJTI, an MBA from Symbiosis Pune, and a diamond grading certified gemologist from IGI. So over to you, Ashish ji. Let us start this webinar. Thank you, Ashok Bhai. I welcome all the viewers and especially the panelists and thank them for taking out time and joining us today. जैसे आपको सबको मालूम है कि सोने में पिछले 5-6 महीने में लगभग 40-50% की छलांग मारी है और उसमें छलांग भी कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हैज़ बिकम अ नॉर्म और दुनिया इतनी कनेक्टेड हो गई है कि जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी घटना घटती है
तो उससे सोने पे इफेक्ट हो जाता है। ट्रम्प और कोरिया का कुछ हो जाता है, चाइना ट्रम्प का कुछ हो जाता है, मिडिल ईस्ट में कुछ हो जाता है, तो सोने पे उसका असर पड़ जाता है. That's why the fluctuations have become a norm, and managing gold price is becoming very difficult. And these fluctuations in the market conditions, like sometimes the customer is substantially good, so people start increasing their stock levels, and suddenly the customers go down, so the stock levels get problematic. People have gold loans which need to be repaid. तो ये सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हेजिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसको जानना समझना आज की तारीख में हर एक ज्वेलर का लगभग फ़र्ज ही हो गया है, क्योंकि मार्जिन अपने कंपटीशन के हिसाब से अपने ट्रेड में मार्जिन कम होते जा रहा है, और मार्जिन कम होते जा रहा है, और इसमें अपना गोल्ड के रेट में कोई भी अपना मिस कैलकुलेशन हो जाता है तो वो केस में अपने को लेने के पीने पड़ जाते हैं. तो इसलिए हेजिंग पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने बिजनेस का एक पार्ट हो गया है. तो इसीलिए वी डिसाइडेड टू हैव दिस सेमिनार. तो इनिशियली मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट मैं गौरी शंकर जी से कुछ जानना चाहता हूँ कि हम तो ये हेजिंग ये वर्ड तो बहुत बार ही सुनते हैं कि ग्लैमरस वर्ड है कि सब लोग कहते हैं हाँ मैं तो हेजिंग करता हूँ, हेजिंग करना चाहिए, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा. लेकिन हेजिंग में भी देयर आर टू थिंग्स, एक फ्यूचर्स का एक मार्केट है, एक ऑप्शंस का मार्केट है. तो मेरे जैसे या बहुत सारे ज्वेलर्स है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, वो लेमैन उनको फ्यूचर्स एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या होता है, ऑप्शंस एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो हम जानना चाहेंगे. तो अगर आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकेंगे, कुछ आपका प्रेजेंटेशन होगा या जिसमें कि हमारे मन में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का एग्जैक्ट क्या होता है वो समझना है. थैंक यू अशोक जी फॉर द इंट्रोडक्शन. एट द आउटसेट मैं तारीफ करना चाहूँगा to the entire team at the GJC for conducting this great initiative for the benefit of the jewelers community at these challenging times. We are going through an unprecedented times actually. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमें इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए और आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करने की मौका मिलने के लिए. आज का टॉपिक हेजिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ज्वेलर्स. जैसे टॉपिक का नाम ही है तो समझना जरूरी है क्या हेजिंग है. और आशीष जी आपने जैसे सही कहा है, हर कोई सुनते हैं हेजिंग क्या है, उन्होंने सुने भी होंगे फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, पर लेकिन इस वक्त जब भी मार्केट में गोल्ड प्राइसेस की काफी उछाल देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, आई थिंक और इस समय में हेजिंग करना बहुत जरूरी है और सही तरीके से जानना कि हेजिंग का क्या मतलब है और क्या कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो in order to understand about the basics of gold futures and options, दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑन गोल्ड प्राइसेस. इसका अंडरलाइंग मार्केट जैसा डेरिवेटिव सारे डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग रहता है, इसका गोल्ड है. एंड बोथ ऑफ देम कैन सर्व द पर्पस ऑफ हेजिंग वेरी वेल विद सम डिफरेंसेस इन द वे दे ऑफर द प्रोटेक्शन. उनका तरीका अलग है प्रोटेक्शन देने का, पर लेकिन दोनों भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. Futures were in existence for fairly a longer period now, more than a decade now, and options has been a relatively recent phenomena. Options में जैसे अशोक जी ने कही है 100 grams की recently launch हुई है, तो और भी refinement के साथ launch हुई है. So I think so before we decide on which instrument, to understand which instrument is ideal for hedging, we must understand and identify the risk in our business which we want to hedge. पहले समझ लेते हैं क्या चीज की hedge करना जरूरी है और hedging requirement क्या है, और उस हिसाब से हम समझते हैं कि futures कैसे उसको solve करती हैं, resolve करती हैं, answer करती हैं.
ये ऑप्शंस कैसे एड्रेस करती हैं। एज ए ज्वेलर मोस्ट कॉमन सिनेरियोस जो मुझे समझ में आई है, जितने इंटरेक्शन मैंने अभी तक किया ज्वेलर्स से, इधर यू हैव इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री है, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके पोजीशंस को फ्रॉम ऑफ कोर्स फॉलिंग गोल्ड प्राइसेस। आपकी इन्वेंट्री है तो आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे फॉलिंग गोल्ड प्राइसेस, अदरवाइज दैट विल कॉज अ लॉस टू यू। और सेकेंड सिनेरियो जो हो सकती है जहां पे यू हैव एडवांस बुकिंग्स और एडवांस बुकिंग स्कीम्स रनिंग, जहां पे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम राइजिंग गोल्ड प्राइसेस व्हिच विल अगेन कॉजेस लॉस टू यू इफ यू डोंट हेज योरसेल्फ। और इन सिनेरियोस में व्हाइल हेजिंग विद फ्यूचर्स क्या होता है, जो आप आज तक बहुत लोग आप में से किए होंगे क्योंकि वो रिलेटिवली बहुत टाइम से है, तो आप जरूर जो मैं बोल रहा हूँ। While hedging with futures, you get an offsetting position, which means अगर कोई भी लॉस होता है फिजिकल मार्केट में, वो कॉम्पेंसेट हो जाता है फ्यूचर्स के गेन से। मतलब एक्सचेंज में जो आपने फ्यूचर लिए होंगे काउंटर पोजीशन, उसके गेन से आपका हेजिंग हो जाता है। जो भी लॉस होता है फिजिकल मार्केट में वो वहां से हेजिंग होता है। और अगर कोई प्रॉफिट होता है फिजिकल में, तो वो भी ऑफसेट हो जाता है लॉस इन फ्यूचर्स। तो अगर देखेंगे तो आपको जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट है जब भी आप फ्यूचर्स के साथ हेज करते हैं। बट वेयर इज बाइंग ऑप्शंस फॉर हेजिंग, अगर कोई भी लॉस होता है स्पॉट मार्केट में या नहीं तो फिजिकल मार्केट में, फिजिकल गोल्ड में, दैट वुड बी कंपनसेटेड फ्रॉम द गेन्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो भी फायदा होगा, जो ऑप्शंस पोजीशन लिए होंगे आपने हेजिंग के लिए, उससे तो आपका नुकसान तो भरपाई हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम आप जब भी फिजिकल गोल्ड में फायदा साइड जो जब भी रहेंगे, उस टाइम में आप वो फायदा आपके साथ रिटेन कर सकते हैं बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द लॉसेस ऑन द ऑप्शंस और लॉसेस ऑन द डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये रहा कि अगर आप फ्यूचर्स के साथ करेंगे तो आप फायदा साइड में या नुकसान साइड में दोनों में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जीरो ही रहेगा आपका लॉस प्रॉफिट जहां पे। पर लेकिन ऑप्शन के साथ अगर आप हेज करते हैं तो आपके जो फायदे साइड में है, हेजिंग में फायदे साइड में जब भी है, आपका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। पर लेकिन जब भी नुकसान साइड में आप अगर रहेंगे तो आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक राइट रहता है, वो मर्जी रहता है। आप अगर चाहेंगे तो ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मर्जी या हक लेने के लिए यू पे ओनली प्रीमियम टू गेट दिस राइट, विच इज एन एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ वन टाइम पेमेंट, आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम के जैसे पे करना पड़ता है। To explain this, let me just take the help of an example. Please allow me to share my screen. You are a co-host, you can do this. Yes, yeah, sure. गौरी शंकर जी, जैसे वो ऑप्शंस के नाम में ये है कि अब मेरे पास ऑप्शन है करना ये नहीं करना, तो वो समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा। राइट। आपको पहले स्क्रीन पे लाना पड़ेगा, बाद में स्क्रीन शेयर करो। ओके, यस Yeah. In the presentation mode, sir? Yeah, we can see. Or in the slideshow mode? Yeah, presentation mode में, yeah, slideshow mode में। So यहाँ पे एनिमेशन है सर, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड शो मोड पे ही यू आर एबल टू सी दिस, राइट? आई मीन फुल स्क्रीन। Yeah. ओके, थैंक यू। सो इसमें जैसे कहा है लिमिटेड डाउन साइड है जब भी आप ऑप्शंस लेते हैं। फ्यूचर्स के मुकाबले में आपको लिमिटेड डाउन साइड रहता है। हम समझते हैं कॉल बाइंग कॉल के एग्जांपल लेके। अभी पहला ये जो आप लेफ्ट साइड में जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट, ये है पे ऑफ डायग्राम। अगर आप जब भी फ्यूचर्स बाई करते हैं तो ये वाले एक्स एक्सेस में जो आपको वाई एक्सेस में जो दिख रहा है, ये लॉस और प्रॉफिट है। ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो लॉस है। और यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस है। जैसे अगर आप बाई करते हैं फ्यूचर्स, जब भी प्राइस गोल्ड का स्पॉट में बढ़ता है, देन यू स्टार्ट हैविंग प्रॉफिट्स। और जब भी प्राइस नीचे घटता है, देन यू स्टार्ट हैविंग लॉसेस। जैसे अगर 54,000 हुआ प्राइस, जब भी 52,000 फ्यूचर्स रहा स्पॉट आज के टाइम में, तो आपने अगर बाई किया है, लॉन्ग किया है फ्यूचर्स, अगर आप हेज करना चाह रहे थे, तो जब भी 54,000 होता है स्पॉट प्राइस, तो आपको सीधा 2,000 रुपए की प्रॉफिट मिलेगा।
वैसे ही अगर ये प्राइस घट के अगर 50,000 हो जाता है तो आपका लॉस जो है वो 2,000 रुपए होएगा जब भी आप बाई करते हैं फ्यूचर। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका पे ऑफ डायग्राम अगर ये टेबल देखें तो जैसे जैसे 48,000 50,000 52,000 का आपने जब बाई किया, जब 48,000 हुआ तो आपको फ्यूचर्स में 4,000 का नुकसान रहेगा। वही 52,000 का जब 56,000 हुआ आपको फ्यूचर्स में 4,000 का प्रॉफिट रहेगा। जहाँ पे अगर आप एडवांस बुकिंग के टाइम में अगर ये स्ट्रैटेजी जब भी करते हैं, जब भी आप बाई फ्यूचर्स करते हैं, जब भी एडवांस बुकिंग रहने के टाइम में, तो ये जो है आपको ऑफसेट हो जाता है। जो फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका नुकसान जो एडवांस बुकिंग या आपका जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसमें नुकसान से कंपनसेट हो जाता है। अगर इसमें प्रॉफिट हुआ एडवांस बुकिंग में आपका, पर लेकिन फ्यूचर्स में आपने जब भी बाई किया हुआ है उसके साथ कंपोजिट हो जाएगा। तो नेट जो है, नेट टू नेट आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस रहता है इसमें, जहाँ की 52,000 का प्राइस ही मिलेगा। आप जो प्राइस बढ़ने का प्राइस घटने का जो फायदा है आप वो नहीं ले पाएंगे इन केस ऑफ फ्यूचर्स। सेम चीज हम लोग ऑप्शन का देखते हैं। जब भी आप ऑप्शन सेम चीज आप बाइंग कॉल के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल मतलब राइट टू बाई है। आप एज अ बाइंग फ्यूचर्स के अल्टरनेटिव में आप बाई कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे जब भी प्राइस बढ़ता है तो आपका जो फायदा है वो फायदा तो आपको मिलता ही है, आप फायदे साइड में सेम ही रहेंगे। पर लेकिन जब भी प्राइस घटता है तो आपका प्राइस जो है यहाँ पे कैपिंग हो जाती है। जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो हमेशा कैपिंग रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम दैट यू हैव पेड। अब जितना प्रीमियम पे किया इतना प्रीमियम तक का आपका वो रह जाता है। इस केस में मान के चलते हैं अगर 54,000 हुआ तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे मान के चले हम 900 रुपए अगर प्रीमियम पे किए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए, तो आपको 54,000 में 2,000 माइनस 900, जहाँ पे आपको 1,100 रुपए प्रॉफिट मिलता। अगर वही आपको 50,000 अगर हो जाता भाव गिरकर स्पॉट में फिजिकल गोल्ड में गोल्ड का भाव, तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपए नुकसान नहीं होगा जैसे फ्यूचर में होता है। यहाँ पे खाली आपको जो मैक्सिमम आपका जितना प्रीमियम आपने पे करा है, यहाँ पे अगर 900 हम मान के चलते हैं तो 900 रुपए ही इसमें लॉस होगा। इवन अगर वो घट के 47,000 भी हो जाएगा आपका नुकसान जो है सीमित रहेगा 900 रुपए। सेम चीज हम लोग अगर आपका एडवांस बुकिंग है तो आपका जब भी 52,000 में आपने जब एडवांस बुकिंग ली जब 48,000 हुआ उसमें तो आपको 4,000 रुपए प्रॉफिट मिला, और जब ये 56,000 होता है तो आपको 4,000 रुपए लॉस होगा। अगर आप ये कॉल के साथ हेज करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, तो ऑन द एक्सपायरी अगर ये प्राइसेस रहे तो आपने जितना पे किए हैं प्रीमियम वही आपका मैक्सिमम नुकसान रहेगा, पर लेकिन अप साइड में आपको प्रॉफिट रहेगा कॉल्स पे। जहाँ की अगर आप नेट में देखेंगे जो एडवांस बुकिंग या बाई कॉल दोनों जोड़कर आपका पोर्टफोलियो में मैक्सिमम लॉस जो है 900 रुपए है, पर लेकिन आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन द प्रॉफिट्स ऑन द प्रॉफिट साइड। ये कॉल आपको एडवांटेज देता है। जहाँ पे अगर हम पुट के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो पुट एज अ बाइंग अ पुट यू डू दैट एज अ अल्टरनेटिव टू सेलिंग फ्यूचर्स। जब भी अगर आप सेल करते हैं फ्यूचर्स एज योर हेजिंग स्ट्रैटेजी, तो आप अगर प्राइस नीचे घटता है तो दैट इज व्हेन यू आर इन प्रॉफिट। और वो स्ट्रेट अगर 52,000 में अगर आपने सेल किया हुआ फ्यूचर तो आपको 2,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। वही अगर स्पॉट का प्राइस अगर 54,000 हो जाता है तो आपको 2,000 रुपए नुकसान रहेगा। वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है ये टेबल में, जहाँ पे आप अगर आप इन्वेंट्री को हेज करना चाह रहे हैं तो आप सेल करते हैं फ्यूचर्स, तो इन्वेंट्री में जो नुकसान हो रहा है वो आपको सेल करके फ्यूचर्स आपको वो कंपनसेट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप इन्वेंट्री आपका बढ़ रहा है, इन्वेंट्री का वैल्यू जब प्राइस का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपका इन्वेंट्री वैल्यू भी बढ़ रहा है, पर लेकिन आपको फ्यूचर्स में लॉस होगा। नेट नेट इफेक्ट आपको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस है। पर लेकिन आप वही चीज अगर आप पुट के साथ अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, जब भी प्राइस घट रहा है तो आप प्रॉफिट साइड में रहेंगे, पर लेकिन जब भी प्राइस घटता है उसका मैक्सिमम लॉस जो है सीमित रहेगा ये रेड लाइन तक। इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे अब अगर 52,000 का 50,000 हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है 52,000 माइनस 50,000 2,000 रुपए, और जो भी आपने प्रीमियम पे की है वो आपका प्रॉफिट रहेगा। अगर वो 54,000 भी होता है तो आपका नुकसान जो है वो सीमित रहेगा जितना आपने प्रीमियम के पे की है। तो यहाँ पे वही चीज टेबुलर फॉर्म में दी गई है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं जब भी आप इन्वेंट्री हेज कर रहे हैं तो आप फायदे में रहेंगे जब भी प्राइस उसका बढ़ता है। अगर आप फ्यूचर्स के साथ करते हैं तो आपको वो फायदा नहीं मिलता जब भी भाव बढ़ता है फिजिकल गोल्ड में, पर लेकिन आपको ऑप्शन के साथ जब भी करते हैं तो आपको ये जो भी प्रीमियम जो पे करते हैं वो आपको एक्सपेंस है,
पर लेकिन आपका अपसाइड ओपन रहता है, और डाउन साइड कभी भी किसी भी हाल में ये अगर 48,000 40,000 भी हो जाए तो आपको मैक्सिमम नुकसान जो है पहले से आपको पता चल रहा होता रहता है, 900 रुपए से कभी बढ़ता नहीं है। जहाँ की अगर फिजिकल गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, माइनस वॉट एवर एक्सपेंस दैट यू पे। दिस इज इन Nice. nutshell the payoff charts of buying a call and buying a put. Thank you, sir. और इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे और भी कुछ स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, जहाँ पे प्रिसीजन के साथ आप हेजिंग कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। फ्यूचर्स में जो भी फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है उसी के साथ आप हेजिंग कर सकते हैं। जहाँ पे ऑप्शंस हैं तो आप कोई भी स्ट्राइक जहाँ पे आपका व्यू है उसके साथ जोड़कर आप एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं हेजिंग में। और मार्केट जब भी साइडवेज मूवमेंट भी रहती है, मतलब भाव अगर बढ़ता भी नहीं है, तो ऑप्शन से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज रहता है। Thank you, गौरीशंकर जी. आशीष जी, व्हाट यू? राइट. सो एसेंशियली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑप्शंस इज लाइक एन इंश्योरेंस, कि अगर आपको लगता है कि भाव एट द हाईएस्ट रेट है तो आप कुछ पोजीशन लेते हो, तो अगर गिर भी जाता है तो आपका लॉस लिमिटेड होता है उसमें, जितना आपने प्रीमियम भरा है उधर तक अपना लॉस कैप हो जाता है आइदर वे. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. फ्यूचर्स में जैसे मार्जिन कॉल आ सकता है बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लॉसेस, वो ऑप्शन साइड में नहीं आएगा. सही सर. मैं अभी हितेश जी के पास आना चाहता हूँ. हितेश जी, जैसे गौरीशंकर जी ने आपको हमें बेसिक्स बताया, तो हमारी इंडस्ट्री में तो देर आर 3-4 चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, राइट फ्रॉम बुलियन टू मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. तो हितेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर्स है या होलसेलर्स है, उनको ये पर्टिकुलरली ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बारी उनको सीज़न के पहले उनको स्टॉक बिल्ड करना रहता है कि सीज़न शुरू होने के 15-20 दिन पहले रिटेलर्स परचेजिंग शुरू करता है, उसके 10-15 दिन पहले मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स माल बनाते हैं. तो तब जो भाव होगा और जब माल रिटेलर छाटेगा और जब भाव काटेगा, ये दोनों के बीच में बहुत सारा टाइम चला जाता है. तो ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ये दो हेजिंग टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप हमें बता पाएँ, ताकि उनका रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क नलीफाई हो जाए. दैट बी ग्रेट. Right, Ashish ji. So first of all, thank you to Ashok ji, Ashish ji, and everyone who is part of the panel and the association as well. उन सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार जो मुझे अभी सुन रहे हैं. और बहुत ही अच्छा लगता है जब फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ में इंटरेक्शन का मौका मिलता है. देखिए, एक चीज हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जब तक हम रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तब तक प्रोबेबली हम हमारे बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो मेरा बिजनेस है, मुझे मेरे बिजनेस पे फोकस करना है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट साथ में होना चाहिए. जब तक ये नहीं करूंगा मैं, प्रोबेबली मेरा बिजनेस में ध्यान कम रहेगा और रिस्क पे ध्यान ज्यादा रहेगा. मैं हमेशा ये कहता हूं ये चीज प्रोग्राम्स में, वेबिनार्स में, कि एक बिजनेसमैन का जो माइंड है वो कंप्लीटली न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए होना चाहिए. अब इस वैल्यू चेन में जो हमारी इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री, इसमें इतने सारे लोग हैं और हर किसी का एक अलग तरीके से एक्सपोजर है. हर कोई अलग तरीके से है और हर किसी का अलग तरीके से फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है. और सही बात तो यह है कि चाहे ज्वेलरी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें कमोडिटीज वाइडली यूज्ड होती हो, सभी जगह बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं. जो वैल्यू चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारे हैं. मगर की टू सक्सेस सिर्फ तब है जब हम रिस्क को समझ पाएं और ये समझ पाएं कि
जो रिस्क है उसको मैं कम कैसे कर सकता हूं। देखिए, एक बात सभी जितने लोग मुझको सुन रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, दैट यू कांट इलिमिनेट रिस्क फ्रॉम योर पोजीशन, फ्रॉम योर फिजिकल मार्केट। आप जब तक बाजार में है, किसी भी तरीके के, चाहे कमोडिटी बाजार में है, फिजिकल मार्केट्स में है, या किसी भी तरीके के बाजार में है, आप रिस्क को ले रहे हैं, यू आर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स रिस्क। और जब तक आप रिस्क को ले रहे हैं, ओके, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से रिस्क को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। रिस्क इलिमिनेट नहीं हो सकती है, रिस्क हटाई नहीं जा सकती है, बट रिस्क को कम किया जा सकता है। अब किसी भी तरीके का मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसको सिर्फ टेक्निकली स्पीकिंग जब मूल्य भाव की रिस्क की बात आती है, मतलब प्राइस की रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन जिसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, कि भाव बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जिस तरीके से प्राइस चेंज हो रही है, अगर उससे रिलेटेड रिस्क है, तो जो सबसे अच्छा टूल विश्व भर में यूज किया जाता है, और वो है वायदा बाजार, डेरिवेटिव्स मार्केट। सो हमेशा याद रखिए, रिस्क को मैनेज करना है, बट रिस्क को मैनेज करने के लिए हमको रिस्क को समझना जरूरी है। अब इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, से बहुत सारे लोग वैल्यू चेन में हैं। बट देखिए, सिर्फ दो तरीके की रिस्क प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके पास में है, मूल्य भाव से रिलेटेड, मतलब भाव से रिलेटेड सिर्फ दो तरीके की रिस्क है। एक उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अगर भाव बढ़ गया तो मुझको रिस्क है, एन इंक्रीज इन प्राइस इज रिस्क टू मी। ये हुए फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दूसरे तरीके के लोग कौन है, जिनको लगता है भाव अगर गिर गया तो मुझको रिस्क है। सिर्फ दो ही रिस्क है। हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर हो, एक रिटेलर हो, या वो कोई भी तरीके का मार्केट पार्टिसिपेंट हो, बट एक्चुअली सिर्फ दो ही तरीके की रिस्क को लोग एक्सपोज्ड होते हैं, एन इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस। ओके, और डेरिवेटिव्स के थ्रू आप ये मैनेज कर सकते हैं। पहला टूल जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स, जिसको लीनियर प्रोडक्ट बोला जाता है, जिसमें आप अगर आपको लग रहा है कि भाव बढ़ेगा तो मुझे रिस्क है, भाव बढ़ेगा, अगर स्पॉट मार्केट में भाव बढ़ेगा तो अगर ये मेरा रिस्क है तो मैं एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूं। ओके, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाव गिरेगा तो मुझे रिस्क है, तो मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर सकता हूं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक लीनियर प्रोडक्ट होने का मतलब होता है कि अगर भाव बढ़ेगा तो आपका जो भाव है उसके सामने जो रिस्क है वो एडजस्ट होती जाएगी, इस तरीके से होगी कि न तो आपको भाव चेंज होने से प्रॉफिट आएगा, न ही लॉस आएगा। वैसे ही अगर भाव गिरेगा भी तो एक जगह प्रॉफिट और दूसरी जगह लॉस। मैं सभी जूलर्स, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, ये एक छोटी सी बात है कि जब मैं हेजिंग की बात कर रहा हूं, जब मैं रिस्क को मैनेज की बात कर रहा हूं, ओके, तब मुझे रिस्क पे ही फोकस करना चाहिए, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे फोकस करना चाहिए। सो मेरी रिस्क जैसी है उस तरीके से मैं कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको यूज कर सकता हूं। बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मगर दो मेजर इश्यूज जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी लाने के लिए एक्सचेंज ने रखे हैं, वो थोड़े समझने वाली बात है कि वो थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। तकलीफ दे सकते हैं मतलब उनको समझना जरूरी है। पहली चीज जिसको हम बोलते हैं मार्जिनिंग, कि जब भी आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ परसेंट मार्जिन्स में चला जाता है। और दूसरा, जब तक आपकी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तब तक कभी भी इंक्रीज इन प्राइस या डिक्रीज इन प्राइस हो, मूल्य भाव बढ़ेगा फ्यूचर्स का या कम होगा, तब आपको मार्क टू मार्केट की तरफ आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। मतलब एक पैसा तो मुझे देना है मार्जिन के लिए, और दूसरा मुझे हर दिन के जो भाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसके लिए रखना है। अब ये जो है, इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस ने ऑप्शन ऑन गुड्स पर्टिकुलरली गोल्ड और सिल्वर के साथ में लॉन्च कर दिया, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में
जितना भी टर्नओवर डेरिवेटिव मार्केट्स में होता है, मैं सिर्फ एक असेट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कमोडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी और भी जितने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जितना टर्नओवर होता है उसका लगभग 90% टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में होता है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। क्यों बढ़िया है? पहली चीज, ऑप्शंस में डील करना मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस खरीदना है। सो ऑप्शंस में जब भी आप डील करेंगे तो आपको मान के रखना पड़ेगा कि आपने एक टर्म पॉलिसी जैसा, मतलब अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक टर्म पॉलिसी जैसा कुछ लिया है, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए आपने थोड़ा सा प्रीमियम दिया है। सो जब भी आप ऑप्शन में डील करेंगे, आप कोई भी तरीके का ऑप्शन खरीदेंगे अपने आप को, आपकी जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है, थोड़ा सा प्रीमियम। कोई एग्जांपल देंगे तो? समझो मैं होलसेलर हूँ और मैंने सामने रिटेलर को 52,000 में माल बेचा है, लेकिन उसका पेमेंट तो 1 महीने बाद आएगा। राइट सर, मैं जान सकता हूं, मैं आपके क्वेश्चन में से आपसे, बिकॉज मैं चाहूंगा सब लोग समझे इस चीज को, आप मुझको ये बताइए, आई वांट दिस टू बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आप आपके इस ट्रांजैक्शन में आपको रिस्क क्या है? भाव बढ़ेगा तो आपको रिस्क है, गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो रिस्क है, या भाव कम होगा ये आपको रिस्क है? बिकॉज मैं हमेशा ये चीज अप्रिशिएट, सही बात है आपकी, मैं नॉर्मली मैं 52,000 में अगर बेचा हूं तो मेरे को भाव बढ़ने का रिस्क है, क्योंकि मेरे पास पेमेंट आएगा तब मेरे को उसका कम सोना मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बट होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट प्ले ऑन दैट, दे डोंट वांट टू कीप द रेट ओपन, वो उनको रिस्क है। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं कि मान लीजिए 53,000 का गोल्ड का भाव चल रहा है 10 ग्राम का, और जो आपने एग्जांपल दिया है कि मैंने एक रिटेलर को दिया है और मुझे 1 महीने बाद पेमेंट आएगा, तो मैं सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा ये लिखने की मेरी बुक में कि मुझे रिस्क क्या है। और इसी तरीके से देखिए, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं, मुझको पता है, एक्सपोज्ड है, समझते हैं फ्यूचर्स, बट ऑप्शन एक नया टूल है। सो मैं वाकई चाहूंगा कि लोग ये चीज को लिखें, जब आपका रिस्क क्या है। सो मैंने लिखा मेरी बुक में कि मेरा रिस्क है, अगर गोल्ड का भाव स्पॉट मार्केट में बढ़ेगा तो मेरे को रिस्क है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा भाव मैं लॉक इन कर लूं, मेरा भाव मैं लॉक इन कर लूं। तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके के जो ऑप्शंस हैं, एक जिसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, जिसमें मुझे खरीदने का अधिकार होता है, समझिएगा, कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार। किस भाव पे खरीदने का अधिकार, वो मैं आज ही फिक्स कर दूंगा। मैं बोलता हूं मैं 53,000 के भाव में खरीदने का अधिकार रखता हूं 1 महीने बाद। करेक्ट। ओके, और ये वादा करने के लिए, क्योंकि मैं एक अधिकार रखना चाह रहा हूं, ये अधिकार अपने पास रखने के लिए कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं खरीदूंगा, और अगर मन नहीं करेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। देखिए, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है, सबसे अच्छी बात है ऑप्शंस में कि मैं अधिकार रखता हूं, अगर मुझको खरीदना है तो मैं खरीदूंगा, और मुझे नहीं खरीदना है तो मैं मना कर सकता हूं कि मुझको नहीं खरीदना है, मगर किस भाव पे, 53,000 के भाव पे। अब इसको मैं फाइनेंशियल मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स के टर्म्स में ट्रांसलेट करता हूं कि मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं 53,000 की स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस भाव पे मैं खरीदने का वादा किया हूं, और ये करने के लिए कि मैं दे रहा हूं, मैं गोल्ड वादा अपने पास रखने के लिए, एक अधिकार अपने पास रखने के लिए, एक हक अपने पास रखने के लिए कि 1 महीने बाद हो सकता है मैं खरीद लूं, और ये भी हो सकता है कि मैं मना कर दूं। तो कॉल खरीद सकता हूं और मेरी रिस्क को मैं मैनेज कर सकता हूं। और सबसे बढ़िया बात कि जिस भाव पे मैंने रिस्क मैनेज किया वो फिक्स हो गई। मुझे पता है कि अब मुझे 53,000 रुपए के भाव पर 1 महीने बाद में गोल्ड ले लेना है, या फिर मना कर देना है, मना भी कर सकता हूं। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर भाव गिर जाता है, भाव 48,000 आ जाता है, तो शायद ऐसा हो सकता है मैं मना कर दूं, और मैं बिल्कुल मना कर दूं। और यही मना करने का अधिकार अपने पास रखने के लिए मैं 500 रुपया सामने वाली पार्टी को
जिसके साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरा, उसको प्रीमियम के तौर पे देता हूँ, असेट के तौर पे नहीं देता हूँ, गोल्ड के भाव के तौर पे नहीं देता हूँ, बट अधिकार अपने पास रखने के लिए ये आपका पॉइंट समझ गया। से मैं थोड़ा पूजा जी के पास आगे चलना चाहता हूँ, क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं उनकी तकलीफें, उनके पेट का दर्द कोई थोड़ा अलग ही रहता है। तो मैं पूजा जी के पास आना चाहता हूँ। पूजा जी, बहुत बार क्या होता है, रिटेलर्स हर एक कस्टमर से छोटा छोटा ऑर्डर लेता है, किसी से 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम वो अक्यूमुलेट करता है और हफ्ते 10 दिन में मिला के किलो का बार लेता है। तो तब तक वो उसमें रिस्क में ओपन रहता है। या आजकल बहुत सारे रिटेलर्स ऐसा भी करते हैं कि जो कस्टमर को भाव ओपन रखने का ऑप्शन भी देते हैं कि अगर भाव बढ़ता है तो भी आज आपका भाव फिक्स, अगर भाव कम होता है तो कम हुआ भाव आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन कस्टमर को देते हैं। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स है जिसमें रिटेलर्स का ये जो प्राइस फिक्सिंग या प्राइस का रिस्क है वो कम हो सकेगा? इफ यू कैन शेयर अस. Sure. We are running short of time, so if you can be a little bit. Yeah. First of all, thank you to the GJC team for giving MCX an opportunity. पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा MCX पे अगर आप बहुत ही लिक्विड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड है तो आपको आसानी होगी हेजिंग करने में, एंट्री करने में और एग्जिट करने में। इसलिए ये स्लाइड मैंने शेयर की है कि जस्ट रिसेंटली हमने 22 जुलाई को टॉप मारा है। वी हैव डन अ टर्नओवर ऑफ 45,891 crores इन बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ही लिक्विड है। गोल्ड किलो का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो भी बहुत ही लिक्विड है, करीबन 3,916 करोड़ का टर्नओवर किया है और सिल्वर ऑप्शंस में 463 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। अभी जैसे आपने हमें पूछा कि वो रिटेल वाले जो है, रिटेल ज्वेलर्स जो है, जो रोज अपना ज्वेलरी बेचते हैं क्लाइंट को, और आजकल क्या है कि क्लाइंट भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए, वो लोग न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं कि सोने का भाव ऊपर जा रहा है। तो कई बार रिटेल शॉप्स में कस्टमर वॉक इन करते हैं और वो बोलते हैं कि एक एग्जांपल की तरह मैं देना चाहूंगी, कैन आई पुट द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि कोई कस्टमर आता है अपने शॉप में और बोलता है कि मुझे अपना प्राइस फिक्स करना है क्योंकि मुझे लगता है कि सोने का भाव और भी ऊपर जाएगा, जैसे कि आज की सिचुएशन है कि भाव ऊपर ही चला जा रहा है। तो वो क्या करता है, वो आपके शॉप में आता है, देखता है उसको एक दागीना पसंद है, वो बोलता है चलो मुझे ये दागीना चाहिए। आप बोलते हो कि वो मेरे रेडी नहीं है, डिजाइन रेडी नहीं है, मैं आपको 20 दिन बाद दूंगा। तो वो क्या करता है, ठीक है आपको मैं 5,000 या 10,000 रुपए देता हूँ और हम लोग प्राइस फिक्स करते हैं, मतलब आज का प्राइस फिक्स करते हैं और आप बाद मुझे आप वो ज्वेलरी देना। ऐसा होता होगा अपने बहुत सारे रिटेल ज्वेलर्स के साथ। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हम फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। हितेश कैन यू पुट नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमें ये करना है कि 48,000 पे जब हम सोना क्लाइंट को बेच देते हैं तभी इमीडिएटली हमको फ्यूचर्स बाय करना है। जो भी गोल्ड का प्राइस हो फ्यूचर्स में उसमें बाय करना है, क्योंकि हेजिंग तभी बैठता है जो हम हाजिर में करते हैं उसका एग्जैक्टली उल्टा हमें वायदे बाजार में करना है, ताकि हम भाव में जो उतार चढ़ाव होता है उससे हम बच सकें। अब 1000 में हमने तो कस्टमर को बेच दिया है 10,000 एडवांस लेके, तभी हम इमीडिएटली बाय करते हैं गोल्ड फ्यूचर्स। अभी जब मटेरियल खरीदने जाते हैं तब दो चीजें हो सकती हैं, या तो भाव गिर सकता है या तो बढ़ सकता है। अभी समझो अगर बढ़ गया तो क्या होगा, हमें रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव खरीदना पड़ेगा, ज्यादा भाव देके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट ने तो प्राइस फिक्स कर दिया 48,000। समझो कल प्राइस हो गया 49,400, तो फिर क्या होगा, अपनी जेब से 1,400 रुपए जाएंगे। बट अगर हमने हेजिंग की हुई है तो हम ये इससे बच सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया कि आपने क्लाइंट को बेच दिया 48,000 पे, इमीडिएटली आप फ्यूचर्स बाय करते हो तब फ्यूचर्स का प्राइस है 47,800, और जैसे ही आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तुरंत ही आपको बेच देना है फ्यूचर्स। जो आपने खरीदा हुआ था फ्यूचर्स वो तुरंत ही बेच देना है और स्क्वायर ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि जब भाव बढ़ेगा, स्पॉट का हाजिर भाव बढ़ेगा, तो फ्यूचर्स भी बढ़ता है साथ साथ, तो फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा।
तो फ्यूचर्स का जो प्रॉफिट मिलेगा वो आप ऑफसेट कर सकते हो और उससे आप मटेरियल खरीद सकते हो हायर भाव में। अभी सेकंड दूसरा भी सिचुएशन हो सकता है कि समझो कि कस्टमर प्राइस फिक्स ना करे, मतलब प्राइस समझो अपना अनफिक्स्ड हो, मतलब आज का भाव चल रहा है 48,000 और कस्टमर बोलेगा ठीक है आप 20 दिन बाद मुझे दागीना दीजिए और मैं भाव आपको तभी मैं प्राइस दूंगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको तो रॉ मटेरियल आज खरीदना है, तो नेचुरली आप चालू होगी। आपने खरीद लिया है रॉ मटेरियल 48,000 में, अभी समझो कल दाम गिर गए, कल दाम समझो 47,600 हो गए, तो क्या होगा 400 रुपये आपकी जेब से जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो कम भाव ही देगा, वो थोड़ी मानेगा कि आपने रॉ मटेरियल ज्यादा भाव में लिया है। तो इससे बचने के लिए आपको फ्यूचर्स को सामने सेल करना पड़ेगा। जैसे ही आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, मतलब हाजिर बाजार में आपने जैसे ही खरीदा, बाय किया, आपको वायदे बाजार में उसका उल्टा करना है, मतलब बेचना है। तो जैसे ही आपने रॉ मटेरियल खरीदा 48,000 में, आपको गोल्ड फ्यूचर्स बेचना है, सेल करना है 47,800 में। अगर भाव गिर गए तो आपको कस्टमर को आप कम भाव दे सकते हो और सामने आपको फ्यूचर्स 400 रुपये प्रॉफिट दे जाएगा। अभी ये हेजिंग टूल जो है वो बनाने के लिए नहीं होता है, बट सिर्फ ये प्राइस रिस्क, अपने भाव में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे बचने के लिए ये चीज का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा जी, मैं एक क्वेश्चन अभी आपको पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो रिटेल छोटे छोटे रिटेलर्स है जिनको समझो 50 ग्राम का कुछ बेचा या 100 ग्राम बेचा, तो इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी 1 ग्राम का भी लॉन्च हुआ है, लेकिन 100 ग्राम का भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, राइट? यस यस यस, हमारे पास हेजिंग करने के लिए रिटेलर को इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, उसको कितना खर्चा आएगा? क्योंकि वो तो लिमिटेड मार्जिन में काम करता है और ये सेफ्टी के लिए अगर उसमें मार्जिन का सब्सटेंशियल पोर्शन इसमें सेफ्टी में जाएगा तो लोग 2 बार सोचेंगे। बराबर है। जैसे सर ने बताया कि हमारे पास 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 ग्राम का है, 8 ग्राम का है और 1 ग्राम का भी है। और ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें आपको मार्जिन जो है वो करीबन 8%, 8% मार्जिन लगता है। 6% इनिशियल मार्जिन है, बट कभी कभी जब जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो आपको मार्जिन थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है। जैसे कि करंटली अगर आप देखो कि सोने में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए 8% करंटली मार्जिन है अपना MCX, तो आपको सिर्फ 8% मार्जिन देके आप गोल्ड का प्राइस फिक्स कर सकते हो। और जैसे हितेश जी ने भी बताया कि फ्यूचर्स में एक चीज होती है कि आपको डेली M2M लगता है, मतलब अगर प्राइस आपके तरफ में जाता है तो आपके बैंक में वो प्रॉफिट क्रेडिट होता है और आपके खिलाफ जाता है तो वो लॉस आपको भरना पड़ता है। सो आपको मार्जिन 8% गोल्ड में और M2M के लिए पैसे थोड़े बाजू में रखने पड़ते हैं। Is there any options का solution? ये प्रॉब्लम के लिए भी ऑप्शन सॉल्यूशन है? एब्सोल्युटली, ऑप्शंस के लिए, इसीलिए हम ऑप्शंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में जैसे अपना लॉस लिमिटेड रहता है, जितना हम प्रीमियम भरते हैं उतना ही अपना लॉस रहता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। जैसे कि हितेश जी ने भी समझाया था और गौरी जी ने भी समझाया था कि जब हम बाय पुट या बाय कॉल करते हैं तो हमें सिर्फ छोटा प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे एट द मनी स्ट्राइक्स का अगर आप बात करो तो करीबन 1.5% प्रीमियम होता है, 1.5% to 2% ही आपको प्रीमियम लगता है, तो वो उतना ही आपका लॉस होता है। और जब आप बाय पुट करते हो और अगर आपके प्राइसेस मतलब गिर जाते हैं तो आपको होता है, बट लॉस सिर्फ अपना जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही होता है, तो करीबन 1.5% से 2% प्रीमियम होता है एट द मनी स्ट्राइक्स के। ओके, थैंक यू सो मच पूजा जी। थैंक यू। नितिन जी, केडिया जी। हाँ जी सर। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आए होंगे या आपको फ़ोन आए होंगे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉट स्टक। जब रेट 40,000 से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने 45 में सामने माल बेचा है या 48 में माल बेचा है, सोच के कि ये तो टेम्पररी ऊपर गया, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं कवर कर लूँगा। या कोई रिटेलर्स ने भी सामने कस्टमर को माल बेच दिया और सामने बिकॉज सप्लाई था नहीं, कुछ मार्केट ही बंद था जहाँ पे फिजिकल सप्लाई नहीं हो रहा था, तो अपना कवर ही नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो 48 47 के भाव में माल बेच के बैठे फंसे हुए हैं और आज 5,000 रुपया रेट और ऊपर गया है।
तो ये जो हेजिंग का जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कुछ जादू है, आप कुछ कर सकते हैं कि जिसमें नुकसान कम होए या कोई ये कैची में पकड़े गए उसमें से निकल जाए, कुछ है आपके पास? सर ऑप्शन को मैं मैजिक बाबा ही बोलता हूँ। अच्छा। तो इसको मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ सर। जैसे सपोज मान लीजिए आजकल क्या है कि सुबह की चाय का जो डिस्कशन होता है वो मेरा नितिन खंडेलवाल जी के साथ अक्सर होता है। तो अभी सपोज नितिन सर ये बोलते हैं कि भाव नीचे आने वाला है और मेरे को ये लगता है कि भाव नीचे नहीं आने वाला है। तो हम लोग एक बेट लगाते हैं और एक कॉफी की बेट लग जाती है कि अगर भाव नीचे आया तो हम एक कॉफी पिलाएंगे। बीइंग अ मारवाड़ी मैं सोचता हूँ भाव नीचे आया तो 500 रुपीज का बेनिफिट चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरे दिन नितिन सर मेरे को फोन करते हैं और वो ये कहते हैं आज भाव 53,000 का है। नितिन भाई आप अपनी शर्त ये है कि इस महीने में कभी भी 49,000 का भाव लगेगा। भाव अगर 49,000 आ जाए तो आप तो मुझे डिलीवरी दे देना या मैं डिलीवरी ले लूंगा। Am I clear? Means today the price is 53,000. I feel the price will not go to 49,000. Opposite party believes that the price will go to 49,000. Or we both say okay, we are putting 500 rupees for our words. Now what happens? The next day I get a call that if price doesn't reaches if price reaches 49,000, then you just give me a delivery of 1 kg. तो मैं बोलता हूँ ठीक है, इट्स ओके। अब क्या होता है सर, 49,000 पे अगर प्राइस रीच हो जाएगा, ठीक है, 49,000 के पे प्राइस अगर रीच हो जाता है बिकॉज 500 रुपीज का प्रीमियम मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, मैं उनको वो डिलीवरी दे देता हूँ और वो 48,500 में वो डिलीवरी ले लेते हैं। तो जितने भी ज्वेलर्स आज फंसे हुए हैं, जो आज फंसे हुए हैं, जिन्होंने 49,000 पे माल बेचा है, 48,000 पे माल बेचा हुआ है, 50,000 पे माल बेचा हुआ है, उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको सबसे पहले उस स्ट्राइक का जिस भाव पे माल बेचा है वो पुट सेल कर देना है। I am again repeating, the jewelers who have sold the metal between 40,000 to 53,000 at whatever price they have sold, they have to sell the put option of the prevailing strike price. Let's say I have sold at 47,000. So what I'll do is Nitin ji, sell ya buy? I'll sell it, sir. Okay. I'll sell it. I'll show you the example also. I will sell the I'll sell the put option of that particular strike जिस भाव पे मैंने बेचा है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बिकॉज मेरा रिस्क कहाँ है, मेरा रिस्क है प्राइस ऊपर जाने में. माई रिस्क इज ट्रिगरिंग बिकॉज द प्राइसेस आर गोइंग अप. एंड एज हितेश भाई सेड कि बॉस अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू बाय अ कॉल ऑप्शन. तो यहाँ पे मैं दो लेग एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा. यस सर. हेजिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका फिजिकल मार्केट और एक्सचेंज दोनों में कॉन्ट्रा पोजीशन लेना चाहिए. जी सर. तो मैंने फिजिकल मार्केट में माल बेच दिया है तो एक्सचेंज में मुझे खरीदना चाहिए. जी सर. करेक्ट. और उसका ऑप्शंस में आपने बोला कि आई हैव टू सेल पुट ऑप्शन. या व्हेन सी सर देखिए जब आप पुट आशीष वो जो बता रहे ना, अविनाश जी भी नहीं सुने, आपने भी पूरा नहीं सुना. वो जो बता रहे हैं कि 47 में अपने माल बेचा है और भाव 53 हो गए. मुझे 53 का कॉल भी रखने का है कि 57 आ जाता है तो मेरे को 57 में सोना मिलना चाहिए. और अगर 53 से 47 सॉरी, और अगर रेट अगर 53 से 57 तक चले जाए 55 तो मेरा लॉस भी नहीं होना चाहिए. तो वो जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, अपर कैप भी लगा रहे हैं और नीचे का ऑप्शन भी ओपन रख रहे हैं. एम आई राइट नितिन जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. प्लीज प्लीज. तो इसमें क्या होगा सर, व्हेनेवर आई एम अ लॉन्ग इन पुट ऑप्शन दैट मींस कि माय व्यू इज दैट द गोल्ड प्राइसेस कैन कम डाउन. ओके. और whenever I am short on the put option, I am just talking about the put option because my strategy में यहाँ पे जो put option है सेल करना वो थोड़ा सा कई लोगों को कॉम्प्लिकेट लग सकता है. तो जब मैं put do you have a slide to explain this sir? मैं एक एक्सेल शीट से भी आपको दिखाता हूँ. हाँ, ठीक है. मैं दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा. सेकेंड चीज ये है कि जब मैं पुट ऑप्शन बेच रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तेजी में हूँ. तो आई शो यू दिस एग्जाम्पल. और साथ में सर अगर आशीष जी आपकी परमिशन हो तो मैं लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि ऑप्शन बहुत कॉस्टली होता है, ऑप्शन महंगा पड़ता है. बिकॉज पहले जब तक मुझे ये नहीं क्लियर होगा कि ऑप्शन वाकई मेरे लिए जरूरी है,
तब तक वो पुट ऑप्शन सेल ही नहीं करेगा. इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स. नहीं सर, इसको आप प्रॉपर एक्सप्लेन करिए, क्योंकि हम 10 भी लेंगे तो हमारे लिए अभी तक के क्या हो रहा है कि हम लोग लर्निंग स्विमिंग बाय ऑनलाइन ट्रेनिंग से कर रहे हैं. हम जब तक पानी में नहीं कूदेंगे हमारे को लर्निंग आएंगी नहीं स्विमिंग की. तो ठीक आप है इसको सर, थोड़ा सा प्रॉपर बताइए. हाँ. सर सबसे पहले तो हमें ये, अगर हम ये देखें जिनको ये लगता है ऑप्शन महंगा है, तो क्या ऑप्शन महंगा है? मैं एक बहुत छोटे से ज्वेलर की बात कर रहा हूँ. 21 मार्च को गोल्ड का प्राइस था 40,000 रुपीज, और उसने कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर 40,000 रुपीज पे गोल्ड को सेल कर दिया. आज भाव है 53,500. मेरा 13,500 का M2M लॉस हो चुका है, और इसके लिए मुझे क्लियरिंग भरनी पड़ी है 67,50,000 रुपीज की. क्या सर 5 किलो मेटल जिसके दुकान पे स्टॉक में रहता हो, या 5 किलो जिसको हेज करना हो, क्या 70 लाख रुपीज उसके लिए पॉसिबल है मार्क टू मार्केट भरना? पहली बात. और दूसरी बात, अगर वो 70 लाख रुपीज आज की डेट में भरता है तो दैट मीन्स उसका स्टॉक 1.4 kg से कम हो जाता है. अगर मैंने यही चीज ऑप्शंस में की होती तो मैंने मार्च में इसको हेज करने के लिए प्रीमियम भरा 1 लाख, जो जीरो हो गया. अप्रैल में भरा 3 लाख, जो जीरो हो गया. मई में भरा 3 लाख, जो जीरो हो गया. जून में वोलेटिलिटी बढ़ी तो मैंने भरा 4 लाख, जो जीरो हो गया. आज की डेट में जब मैं किसी को बोलता हूँ कि 1200 रुपीज का पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है, तो वो कहता है बहुत महंगा है, पर 5 किलो के लिए मैंने 6 लाख रुपीज भरा. तो मार्च से लेके अब तक मेरा लॉस हुआ है ऑप्शन में 17 लाख रुपीज. लेकिन यही गोल्ड आज मैं फ्यूचर में बेचता हूँ, या MCX में बेचता हूँ, या फिर मैं फिजिकल में बेचता हूँ, और वो डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे आज 50 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ ऑप्शन. तो किसी भी प्राइस पे ऑप्शन महंगा या सस्ता नहीं है, आपको माहौल देखना है कि वोलेटिलिटी क्या चल रही है. नाउ कमिंग बैक टू कि अगर मैंने 47,000 में बेचा है, 48,000 में बेचा है, 50,000 में बेचा है, तो मुझे हेजिंग कैसे करनी है? तो ये एक एक्सेल शीट है जिसमें आप कभी भी अपना अगर पे ऑफ निकालना चाहो तो ये आपको पे ऑफ निकाल के दे देती है. मेरा व्हाट्सएप नंबर आप GGF से कांटेक्ट करते हो तो आई विल शेयर द एक्सेल शीट विद यू, या मैं नितिन सर के साथ ये शेयर कर लूंगा, आशीष सर के साथ, वो आपको प्रोवाइड भी करा देंगे. सर हमने बात करी थी आपको पुट बेचना है. पुट बेचने का मतलब क्या होता है सर? पुट बेचने का सिंपल मतलब है सपोज करंट भाव है 53,500 और मैंने 53,500 का पुट बाय किया, जिसका प्रीमियम मैंने दे दिया 1,200 रुपीज. 20% का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चल रहा है, जो बोलता है भाव 20% बढ़ सकता है और भाव 20% घट सकता है. मैं सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ. जिस तरीके से भाव बढ़े हैं लास्ट 1 महीने में, अगर ये भाव 10% बढ़ जाता है, उस केस में सपोज ये 60,000 का, हाँ जी 1200 रुपये एक कॉन्ट्रैक्ट का है ना? हाँ जी, एक कॉन्ट्रैक्ट का. 1 कॉन्ट्रैक्ट का 100 ग्राम्स. सर 10 ग्राम का प्राइस है ये. तो 1200 रुपये 10 ग्राम पे लगेगा? हाँ 1200 रुपये 10 ग्राम पे. ओके ओके. तो अगर ये सर ये एक्सपेंसिव लगता है सर, मैंने जो लास्ट, हाँ जो मैंने लास्ट शीट दिखाई थी वो समझ गया मैं. हाँ. लेकिन कोई भी रिटेलर या कोई भी होता है तो उसमें दिस वर्क्स आउट टू 1200 ऑन 53,000, तो देखने में उनको वो एक्सपेंसिव लगता है. सर ये कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, वही मैंने इस स्लाइड में डिस्कस, मतलब ये एक्सेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. थैंक यू. थैंक यू सर. तो 60,000 अगर मेरा प्राइस हो जाता है तो उस केस में सर मेरा डिफरेंस कितना आया? 6,500 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होता है, और मैंने प्रीमियम पे किया हुआ है माइनस 1200, वो मेरा कॉस्ट कट जाएगा और मुझे नेट में 5,300 रुपीज ऑप्शन से मिल जाएंगे. पर अब जैसे सर ने बोला, नितिन जी सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन जी, इसमें मेरे को एक और चीज समझाइए. इन जनरल व्हाट इज द ब्रोकरेज which is charged on? It will be charged only on 1,200 rupees or it will be charged on what? Point number 1. And point number 2, what is the CTT? ठीक है सर. सर ब्रोकरेज इसमें लॉट वाइज लगता है, तो ऑन एंड जनरल ब्रोकरेज जो लगता है वो आपका 1 किलो के पीछे वो 150 रुपीज लगता है.
और CTT आपको जो पे करना है वो प्रीमियम पे करना है। जो अब आप ऑप्शन को सेल करते हो तब आपको इसमें CTT पे करना है। आई थिंक पूजा मस्ट बी हैविंग अ स्लाइड, तो इसके बाद वो कॉस्ट वाला स्लाइड भी हम आपको पूरा दिखा देंगे। पूजा जी आपके पास है वो स्लाइड? कौन सा वाला आप बोल रहे हो, कॉस्ट वाला? हाँ कॉस्ट वाला, ऑप्शंस की कॉस्ट वाला। हाँ एक मिनट। तो एक बार जरा ये खत्म होता है फिर आप प्लीज दिखा दीजिएगा। या श्योर। तो सर अभी ये बात जैसे आशीष सर ने बोली कि 1200 रुपए का प्रीमियम बहुत महंगा है, तो ये कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए कॉस्ट जब भी कम होगी तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप रिवॉर्ड बढ़ा रहे हो। आप जब कॉस्ट कम कर रहे हो, आप रिवॉर्ड बढ़ा रहे हो, तो इट विल इंक्रीज योर रिस्क ऑल्सो। ऑप्शन जब आप बाय करते हो तब आप रिस्क एलिमिनेट करते हो, आप रिस्क पूरा खत्म कर देते हो वो पर्टिकुलर प्रीमियम पे करके। बट व्हेन यू सेल द ऑप्शन देन यू इंक्रीज द रिस्क। पर जब मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए रिस्क क्यों नहीं है? बिकॉज दुनिया भर के, मतलब आई हैव स्पोकन सिंस मैं लास्ट 3 साल में मैं दुनिया भर के कम से कम 700 से 800 ट्रेडर्स से बात कर चुका हूँ, फिजिकल ट्रेडर्स के साथ में, जो ऑप्शन के थ्रू हेजिंग करते हैं। मेजरली मैंने देखा है कि सिंगापुर के अंदर और लंदन के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज ऑप्शन फॉर द हेजिंग, और जब उनका बाय पोजीशन होता है और वो भाव छूट जाता है तो दे सेल द पुट। तो अब मैं पुट क्यों सेल कर रहा हूं सर? सपोज मान लीजिए मेरा 50,000 के प्राइस पे मैंने माल बेच दिया था, वो माल मैंने कवर नहीं किया है। अब 50,000 का जो पुट आ रहा है वो आ रहा है 500 रुपीज। तो जब मैं बाय करूंगा तब ये मेरा कॉस्ट है 500 रुपीज, पर जब मैं ये सेल करूंगा तब ये 500 रुपीज का प्रीमियम मुझे मिलता है। बिकॉज कोई भी चीज जब आप बाय कर रहे हो तो सामने वाला कोई आपको सेल कर रहा है, जिसके लिए ये कॉस्ट है, सामने वाले के लिए वो इनकम हो जाता है जो आपको बेचता है। तो अगर नितिन सर ने ये मुझे बेचा है या आशीष सर ने ये मुझे बेचा है तो ये उनकी इनकम है और मेरा एक्सपेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मैं ये 500 रुपीज में बेच रहा हूँ तो मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 49,500 अगर भाव टूट जाता है विच इज स्ट्राइक माई प्राइस माइनस प्रीमियम, तो मैं इसका डिलीवरी उठा लूंगा इन एनी कॉस्ट। जब मैं पुट ऑप्शन 50,000 रुपए का 500 रुपए में बेच रहा हूं तो दैट मीन्स आई एम बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ 1 kg थ्रू एक्सचेंज एट द प्राइस ऑफ 49,500। तो मेरा चूंकि बिकॉज ये नेकेड स्पेकुलेशन नहीं है, मैंने ऑलरेडी माल बेचा हुआ है, मेरा ऑलरेडी एक एक्सपोजर है, तो उस एक्सपोजर के अगेंस्ट में अपनी कॉस्ट को, अपने एवरेज को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे पुट बेच दी, जिसमें मुझे 500 रुपए मिल गए और मैंने प्रॉमिस कर दिया कि अगर 49,500 के नीचे प्राइस जाएगा तो मैं ये गोल्ड की डिलीवरी उठा लूंगा। अब सेकंड चीज ये आती है कि अगर सपोज यहाँ से भाव बढ़ के 60,000 हो गया, उस केस में क्या होगा? क्योंकि अगर ये भाव 50,000 नहीं आया तो मुझे जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है वो सिर्फ 500 रुपए का मिलने वाला है, क्योंकि मैंने 500 रुपए की लिमिट लगा के ये ऑप्शन को बेचा हुआ है। जिस प्राइस पे आप ऑप्शन को बेचते हो वो प्राइस, वो भाव आपका मैक्सिमम बेनिफिट होता है। अगर आपने 600 रुपए के प्रीमियम पे बेचा है तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट ही 600 रुपए का है, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी मुझे किसी भी कीमत पे 500 रुपए से ज्यादा इस पुट ऑप्शन को बेचने पे नहीं मिलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे 2 लेग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उस 2 लेग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मैंने यहाँ पे जो ये पुट ऑप्शन बेचा है, मैं सामने कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। और अब अगर मैं मान लीजिए 54,000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, जिसका प्रीमियम मैं 1200 रुपए देता हूं, तो मेरा जो नेट कॉस्ट रह जाती है वो 700 रुपए रह जाती है। यानी जो कॉस्ट मुझे ज्यादा लग रहा था, जो मुझे लग रहा था कि मैं 1200 रुपए पे कर रहा हूँ, विच इज वेरी हाई एंड एक्चुअली इट इज हाई, दैट इफ आई एम पेइंग 2.4%, so now that 2.4% has came down to 1.4%, the 1% has came down, and but with a condition that at 49,500 I have to take the delivery. आशीष सर यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है किसी का तो वी कैन टेक इट, फिर हम एक्सेल में जा सकते हैं। ये समझ गया, ब्रॉडली समझ गया ये। और ये टॉपिक इतना डीप है कि एक बार वेबिनार में पूरा समझ में किसको नहीं आने वाला है, ये हम भी जानते हैं, but this will give a flavor कि क्या कर सकते हैं, उसका आइडिया आ सकता है। Yeah, just for the English audience, that what I have done is that I have sold a put at 500 rupees premium with a promise that if the price falls to 49,500, I'll take a delivery.
इन टूडेज कंडीशन वैसे भी अगर मैं आपसे बोलूं तो आज की डेट में जिसने 50,000 पे माल बेच के 53,500 का भाव देखा है, वो तो ये भी कहता है कि अगर 50,500 आ गया, 51,000 भी आ गया तो मैं मेरा कवर कर लूंगा। एम आई राइट और नॉट सर? तो इस केस में मैं बाउंड हूं कि 49,500 आई टेक द डिलीवरी, and on the opposite if it goes to 60,000 then how I am going to insure myself? I'll buy a call option of 54,000 at a premium of 1,200 rupees. So the earlier the mine cost, which was 2.4%, it has came down now to 1.4%. Now this is a Excel sheet of the payoff कि अगर इस पूरे महीने के एंड पे भाव क्या मेरे को प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने कॉल बाय किया एक लॉट, तो मैंने यहाँ पे 1 लॉट कॉल स्ट्राइक लिख दिया 54,000। कैलकुलेटेड प्रीमियम बिकॉज द हिस्टोरिक वोलेटिलिटी इज वेरी हाई, तो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे जो एनएससी की वेबसाइट पे प्रीमियम था वो मैंने यहाँ लिख दिया 970, या जो प्रीमियम मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ लिखना है 553। यहाँ पे पुट का प्रीमियम मैंने लिख दिया। अब अपने आप इसमें ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, वेगा कितना है। डेल्टा मैं बहुत शॉर्ट आपको बोलता हूँ कि अगर गोल्ड का भाव 100 रुपया बढ़ेगा तो मेरा कॉल ऑप्शन कितने रुपए से बढ़ेगा, तो मेरा कॉल ऑप्शन 50 पैसे से बढ़ेगा। और अगर गोल्ड का भाव 100 रुपए बढ़ेगा तो मेरा पुट ऑप्शन कितने पैसे से बढ़ेगा, वो 32 रुपए से बढ़ेगा, 32 रुपीज से बढ़ेगा। यानी गोल्ड के भाव में अगर 100 रुपीज की तेजी आती है तो ये स्ट्रैटेजी मुझे 82 रुपीज का बेनिफिट देगी। तो डेल्टा आपको बताएगा कि 100 रुपीज के मूवमेंट में आपको आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू कवर मी बाय 82 रुपीज। थीटा इज कि अगर सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 200 रन आपको बनाने हैं, तो 200 रन की स्टार्टिंग में अगर आपने इंडिया आज 40 ओवर में 180 रन बना चुका है तो प्राइस आप देखो जो बेटिंग का होता है वो काफी नीचे आ जाता है, इंडिया के फेवरेबल हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो उसका वैल्यू पर डे गिरता है, जैसे पर बॉल के बाद आपका बेटिंग का प्राइस ऊपर नीचे होता है कुछ थोड़ा सा, वैसे ही जब आप कॉल या पुट बाय करते हो तो आपका पर डे उसका प्राइस गिरता है, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो थीटा कॉल बायर या पुट बायर पे करता है और जो सेलर है उसको वो मिलता है। तो हम यहाँ पे हाँ जी, ये जो हम बाय या सेल कर रहे हैं दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर डे, करेक्ट? हाँ जी सर। तो वो डे के जितने हम पास जाते जाएंगे उतना पर डे का क्या वेरिएशन आएगा उसको थीटा कहते हैं। हाँ, उसको थीटा कहते हैं। पर डे आपका कितना वैल्यू डिके होने वाला है। तो आपने जब कॉल बेची तो आपका पर डे कॉल का प्रीमियम 60 रुपीज से टूटेगा और आपका पुट का जो प्रीमियम है वो 54 रुपीज से टूटेगा, बिकॉज यू आर अ पुट सेलर। तो आपको ये 54 मिलेंगे और यहाँ पे आपके 60 रुपीज जाएंगे। तो नेट में इस स्ट्रेटेजी में आपको पर डे प्रीमियम 6 रुपीज टूटेगा। थीटा आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैलकुलेट होगा सर। हर एक स्ट्राइक का थीटा जो होता है वो आप जब प्रीमियम डालते हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला से हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का वो थीटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप जब नेट थीटा निकालोगे, बिकॉज जब हमने यहाँ पे 2 स्ट्राइक करी, हो सकता है 4 स्ट्राइक हो, 5 स्ट्राइक हो, तो दिस पर्टिकुलर एक्सेल कैन कैलकुलेट द 10 लाख, तो वो आपको 10 लाख का नेट थीटा आपको निकाल के यहाँ पे दे देगा। ओके, तो थैंक यू नितिन जी। मैं थोड़ा अभी नितिन जी खंडेलवाल जी के पास जा रहा हूँ। नितिन भाई, अभी तक हमने ये तो सब टेक्निकल बातें सुनी, लेकिन आप और आपका लड़का मिलके ये प्रैक्टिकली पिछले 1-2 साल से आप कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि आपने इसका प्रैक्टिकली कैसे यूज किया और आपका एक्सपीरियंस क्या आया है और आपका इसके बारे में टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए पहले तो हाँ जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो जो आपने एक हेजिंग किया था, अल्टीमेट हेजिंग था, वो रियल एस्टेट के साथ, वो जरूर एग्जांपल दीजिएगा। बहुत पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया। देखिए पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ कि मेरा बेटा तो अभी 2 ही महीने हो गया बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, अभी सिर्फ आगे एजुकेशन की वजह से ये पढ़ रहा है, नितिन जी और ये हितेश जी और गौरी शंकर जी के साथ में। मैं जो सिंपल मेथड से जो हेजिंग करते आ रहा हूँ, और वो बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हम मुंबई से लेते हैं या दिल्ली से ज्वेलरी लेते हैं तो हमारे पास में 2 टाइप के ज्वेलर्स होते हैं। एक तो बिल बना के दे दिया और हम उसका महीने 1.5 महीने में प्राइस दे रहे हैं, और उसने हमको जो भी करंट रेट है सामने देख लिया किसी भी साइट के ऊपर और दे दिया। दूसरा हमारे पास में जो हमारे होलसेलर मैन्युफैक्चरर है वो ओपन पोजीशन में देते हैं कि 1 किलो सोना दे दिया, आप जैसा जैसा पैसा देंगे वैसा वैसा हम इसका रेट कट करेंगे और आपका बिल बना के देंगे। तब वो
तो डिफिकल्टी यहाँ पे आती है कि आप बिल बना के नहीं लेते हैं तो आपको कुरियर से लेके सब जगह डिफिकल्टी आती है। और आपने अगर अनफिक्स रेट में लिया तब भी बिल बनता है, फिर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है हम लोगों को कि इतने रुपए में बिल तो बना, लेकिन ये ओपन पोजीशन है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा हमने एक मैन पावर रखी है। और हेजिंग हम बहुत सिंपल करते हैं। और आजकल तो हेजिंग ऐसा हो रहा है कि जब लॉकडाउन था हम सब लोगों ने स्कीम चलाई थी कि आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भर दीजिए और सोना बुक कर लीजिए, क्योंकि बढ़ रहा था। वो था अक्षय तृतीया और था दूसरा गुड़ी पाड़वा। तो उस समय जैसे जैसे पैसे अकाउंट में आ रहे थे और सामने कोई सौदा कर नहीं रहा था, क्योंकि किसी का भी होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चर किसी का भी खुला नहीं था। तो हम उस समय के अंदर कोई भी एक एक्सचेंज के अंदर 200 ग्राम के पैसे आए तो 200 ग्राम हम सोना उसके अंदर बाय कर लेते थे। 300 के पैसे आ गए 300 हम बाय कर लेते थे। और ऐसा करते करते वो फॉर्चुनेट था कि रेट बढ़ते चले गए, और रेट बढ़ते चले गए तो हमको मार्जिन भी फ्री होने लग गया और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ी। हम सोने पे सोना बाय करते चले गए। ऑन द कॉन्ट्ररी एक नुकसान ये भी सामने था जो दिख रहा था। फिर मैंने नितिन जी से उनसे बात किया था कि जब हमने लॉकडाउन के समय शोरूम बंद किए, करीब 38 से 40 हजार रुपए के रेट थे, और हम लोगों ने एक समझो 10 किलो किसी भी मार्केट से ज्वेलरी लिया, चाहे झबरी बाजार से लिया, कुछ महाजनी से लिया। अब अचानक लॉकडाउन आ गया तो पेमेंट 2-3 महीने गए नहीं। अब उसके बाद जब खुला तो रेट अपने फिक्स थे और क्योंकि अनफिक्स थे और अपन पेमेंट देते चले जा रहे थे। लेकिन मीनवाइल उस समय जो लोगों की हमने ज्वेलरी का कस्टमर की ऑर्डर लिया था, वो ऑर्डर थी हमारी 38 से 40 हजार रुपए के रेट में। तो 50% माल तो हमारा पेड आ गया था, 50% अनपेड था, और कस्टमर लेने आ रहे थे लॉकडाउन ओपन होने के बाद में 48 हजार के रेट में। तो उस समय हम लोगों को ये हेजिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, जो थैंक्स टू दिस ऑल 3 एक्सचेंज, उन्होंने 100 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया। तो जैसे जैसे हमारे पास बुकिंग आ रही थी हम उसके अंदर सोना पकड़ते चले जा रहे थे और मार्जिन मनी आ गई। उसके बाद में डिलीवरी का डर था कि डिलीवरी मिलेंगी कि नहीं लॉकडाउन में, लेकिन वो मुझे नितिन जी को पता है कहाँ से डिलीवरी आई, लेकिन डिलीवरी हो गई और एमसीएक्स से लेके सब जगह पे डिलीवरी। तो हम तो सिंपल काम करते हैं, जब हम सोना भेजते हैं फिजिकल में कस्टमर को तो हम उसको एमसीएक्स में और एनसीडीएक्स में उसको पकड़ लेते हैं और जब हो जाता है तो सेल कर लेते हैं। लेकिन नितिन ने केडिया जी ने मुझे पूछा है तो मैंने एक थोड़ा सा विचित्र हेज किया था, जो मैंने 1-2 बार प्लेटफॉर्म पे पहले बताया था, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब ये बच्चे की बात चल रही थी और जब बच्चे पढ़ने के लिए मुंबई जाने लगे तो फ्लैट लेने की जरूरत पड़ी, और न्यूज ये थी कि सोना आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। अब हम ज्वेलर्स लोग अगर कुछ भी शोरूम से पैसा निकालते हैं कहीं से भी बिजनेस में से, तो हमारा फिजिकल स्टॉक तो कम होना तय है। हम अगर 25 लाख रुपए निकालते हैं तो 25 लाख यानी हमारा उस समय 1 किलो सोना कम होते चले गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था आज के 13-14 साल पहले, जैसे ही पैसा निकाल के हम लोग हमारे बिल्डर को देते जा रहे थे, मैं एमसीएक्स उस समय वो एक ही चैनल था, एमसीएक्स में मैं गोल्ड बाय करते चले जा रहा था। लगभग 16 किलो सोना मेरा स्टॉक में से कम हो गया और मेरा फ्लैट मेरा परचेस कर लिया। अब ये मुझे पता था कि जब मेरे एक फार्म मेरा सेल करना था, मेरा एक खेत, और उससे पैसा मुझे आना था, या मैं कमाई करके पैसा लूंगा, तो मुझे पता था कि ये पैसा मैं निकाल रहा हूँ, मेरा दोहरा नुकसान है। प्रॉपर्टी लूंगा उसके उतने रेट बढ़ेंगे नहीं, और जो मैं सोना शोरूम में से शॉर्ट कर लिया उसके रेट बढ़ने वाले हैं। तो मैंने जितना किलो सेल पैसे में निकला उतने किलो में गोल्ड लेता चला गया। प्रॉपर्टी के सामने मैंने गोल्ड को हेज किया। जब मेरे पास में पैसा आया, मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 1 साल बाद का प्रीमियम लगता था, उसकी चर्चा नहीं हुई अभी नितिन जी। अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद का भी ले सकते हैं, उसमें मिलता कम है, लेकिन अगर आप लगा के रखते भीड़ तो मिल भी जाता है आपको। मैंने 1 साल बाद का थोड़ा प्रीमियम देके मैंने गोल्ड एमसीएक्स में परचेस कर लिया था। जैसा जैसा मेरे पास पैसा आते चले गया, मेरी दूसरी प्रॉपर्टी सेल करके मैंने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मेरा गोल्ड ले लिया। तो मैंने जो गाड़ी छोड़ दी थी 16,000 से 17,000 के बीच में, वो 22 से 23,000 में मैंने फिर कैच कर ली। तो हुआ ये कि मेरा सोना फिर से मुझे 16-17 हजार में मिल गया और मेरी प्रॉपर्टी भी बाय हो गई। ये मैंने एक प्रॉपर्टी के सामने हेज किया था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सर। नितिन, मैं रोज आपसे बात करता हूँ तो कुछ नया सीखने को मिलता है। आज तो 2 नितिन है तो नितिन में डबल हो गया। ओके, गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि हम लोग को ये ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा विल मूव फास्टर कि अभी तक ये वर्ड प्रीमियम, ये वर्ड हमने 10 से 20 बार सुना है, लेकिन ये प्रीमियम एक्चुअल कैलकुलेट कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है? और जैसे नितिन जी ने बोला कि उसका प्रीमियम कम करने का स्ट्रेटेजी होता है, लेकिन ये प्रीमियम ये चीज है कहाँ से, कौन डिसाइड करता है, अगर ये हम जानना चाहेंगे।
जरूर सर, मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा प्रेजेंटेशन, जो कि समझ में जल्द आ जाए। Are you able to see the presentation, sir? Yes, sir. Yes. Yeah. जैसे आप देख पा रहे हैं, there are 5 factors, जो 5 चीजें हैं जो predominantly options premium डिसाइड करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस हो गया फिजिकल मार्केट में कितना है भाव, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है, वॉलेटिलिटी कितना है, टाइम टू एक्सपायरी कितना है, मतलब कितना डेज है रिमेनिंग टू एक्सपायरी, और क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। जो पहले दो चीज हैं, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों से आपको सीधा सीधा इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आता है। ताकि हम लोग अभी तक इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी डिस्कशन हुआ नहीं है, पर लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइसिंग समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आज के डेट में अगर 52,000 की गोल्ड, फिजिकल गोल्ड प्राइस है, स्पॉट प्राइस 52,000, अगर आप 50,000 के कॉल खरीदते हैं तो मतलब आपके पास 50,000 में भाव खरीदने का हक है, तो इसमें 2,000 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब क्योंकि जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते ही आप 2,000 रुपए की फायदा में रहेंगे अगर इमीडिएटली एक्सरसाइज करेंगे तो वो जो हो गई इंट्रिंसिक। अगर पुट का एग्जांपल लेते, 52,000 रुपए जब स्पॉट प्राइस रहा, अगर आप 55,000 का अगर पुट स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें 3,000 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो आप जब भी ऑप्शन प्रीमियम देखेंगे, एक उसमें दो चीज रहता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू तो हम समझ गए, आप स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस देख के आप निकाल सकते हैं कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है। और खाली इन द मनी जो स्ट्राइक्स होते हैं, जहाँ की अगर वो इमीडिएटली एक्सरसाइज कर दें तो बायर के हाथ में पैसे आ जाएं, उसमें ही इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे इंट्रिंसिक वैल्यू रहता नहीं है। एट द मनी स्ट्राइक्स हो गए, जो कि अगर करंट भाव स्ट्राइक प्राइस सेम रहा तो वो एट द मनी है, और आउट ऑफ द मनी वो हो गया अगर इमीडिएटली एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कोई कैश फ्लोस नहीं रहेंगे बायर के हाथ में। क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम मैं ये टाइम टू वैल्यू समझाऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पॉट प्राइस तो आपको पता चलता ही है क्योंकि मार्केट में बहुत समझ में आता है। स्ट्राइक प्राइस स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टर में ही रहता है स्ट्राइक प्राइस। बाकी टाइम टू एक्सपायरी भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के डिस्क्रिप्टर में ये रहेगा आपको कि कब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। सो जिस ट्रेड में आप ट्रेड कर रहे हैं जिस डेट में, अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास टाइम टू एक्सपायरी तो आपको पता ही है। अगर आप स्पॉट की जगह फ्यूचर्स प्राइस ले लेते हैं ऑप्शन प्राइसिंग में, तो आपको इंटरेस्ट रेट डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही एक्सपायर होते हैं। तो बाकी जो चीज यहाँ पे आपको पता नहीं होता जो प्रीमियम डिसाइड करने में, वो है वॉलेटिलिटी, जो चीज लोगों को पता नहीं होती। तो एक क्विकली हम समझ लेते हैं वॉलेटिलिटी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पे कमोडिटी से, एबीसी कमोडिटी, एक्सवाईजी कमोडिटी। अगर ये सोच लीजिए कि 1 महीने का भाव है, 1 महीने में जो उतार चढ़ाव चला है, स्टार्ट में हुआ 100 रुपए सोच लीजिएगा दोनों का स्टार्टिंग प्राइस पर, लेकिन आप अगर जैसे ये स्क्रीन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें ज्यादा उछाल है, किसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे क्लियर है एक्सवाईजी कमोडिटी में ज्यादा उछाल है, क्योंकि ये 106 रुपए गया ऊपर और नीचे गया 94, मतलब 12 रुपए घूम गया इंट्राडे या 1 महीने में। जहाँ पे ये कमोडिटी जो है 102 रुपए और 98 के बीच में ही घूमता रहा, तो ये लेस वॉलेटाइल रहा, ये ज्यादा वॉलेटाइल रहा। तो आप जो सवाल पूछे कि कौन ड्राइव करता है ऑप्शन प्रीमियम, डेफिनेटली मार्केट में बायर सेलर्स ड्राइव करते हैं, पर लेकिन ये मेनली डिपेंड करता है रिस्क परसेप्शन ऑफ द सेलर। क्योंकि cut you there. Sure. So बोलिए, complete. खाली सो अगर आपके पास हायर वॉलेटिलिटी है, जहाँ पे वहां पे आपको ज्यादा प्रीमियम्स रहेंगे, जहाँ पे कम वॉलेटिलिटी है कम प्रीमियम रहेगा। सिमिलरली जहाँ पे ज्यादा टाइम टू एक्सपायरी रहेगा आपको हायर प्रीमियम्स रहेंगे, जितना कम टू एक्सपायरी रहेगा वहां पे कम प्रीमियम रहेंगे। यस सर। लेकिन बहुत बार हम ये सुनते हैं कि ऑप्शंस में ज्यादा कारोबार नहीं होता है, या ऑप्शंस में द वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड, ये तकलीफ आती है। तो मैं हितेश जी से जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है। इज देयर इनफ वॉल्यूम के इन ऑल द एक्सचेंजेस
कि हम इजीली अपने को जो चाहिए वो स्ट्राइक प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वॉल्यूम होगा नहीं होगा, अभी क्या सिचुएशन है? ओके, सो पहला चीज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ज्यादा पुराने नहीं हैं, लगभग 2 महीने पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंजेस पे लॉन्च हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सेबी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने लिक्विडिटी स्कीम होती है, लिक्विडिटी इनहेंसमेंट इंसेंटिव स्कीम, वो चालू कर रखा है। इसका मतलब यह होता है कि हमेशा एक मार्केट मेकर आपको बाय और सेल का भाव सभी स्ट्राइक प्राइसेस पे लगभग देता रहेगा। ये एक स्कीम होती है जो सेबी अप्रूव करता है और एक्सचेंजेस लॉन्च करते हैं। इसमें एक मार्केट मेकर मार्केट को इनिशियल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी नए प्रोडक्ट में इसका परमिशन लिया जा सकता है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, और ये चालू होता है। सो इस समय पे लगभग सभी स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शंस ऑन गुड्स जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो अच्छे से लिक्विड है। इस समय पे बीएससी ने 29 जुलाई को 5,000 करोड़, सिर्फ 2 महीने पुराना प्रोडक्ट है मगर 5,000 करोड़ का टर्नओवर टच किया। 29 जुलाई को 5,000 करोड़ का टर्नओवर। अभी पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट भी नया है, बट फिर भी अगर हम समझें तो 5,000 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी ऑप्शंस में टच हो चुका है। सो सर सफिशिएंट लिक्विडिटी है। और जैसे जैसे जितने भी मेंबर्स मेरे को सुन रहे हैं एसोसिएशन के, वो पार्टिसिपेट करेंगे तो और भी जो डिफिशियंसीज हैं वो तो खत्म हो ही जाएगी। ओके, अब पूजा जी, अभी हमने सबसे बात करते हुए ये देखा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर्स में या इवन ऑप्शंस में भी कभी कभी होते हैं, तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट आज कितना है? वॉलेटिलिटी से बढ़ा है क्या? और ऑप्शंस में भी मार्जिन रखना पड़ता है, कितना होता है? इफ यू कैन एक्सप्लेन। या जैसे कि फ्यूचर्स में आपको सिर्फ एक मार्जिन पे करना है, तो गोल्ड में करीबन 6% मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन 6% है, बट जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ता है मार्जिन भी बढ़ता है। तो वॉलेटिलिटी की वजह से अभी करीबन एमसीएक्स पे 8-8.5% मार्जिन है गोल्ड। और ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको मार्जिन पे नहीं करना होता है। बायर, अगर आप बाय करते हो या पुट बाय करते हो तो आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। तो वो प्रीमियम जो है वो करीबन 1.5 से 2% प्रीमियम आपको लगता है एट द मनी स्ट्राइक्स पे। ओके ओके, आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आशीष भाई, I have a small question over here. Yeah, and connected to this also has a only. question on In case of selling a put option, then what will be the situation? Okay, if you are selling a put option, सेलर को पूरा मार्जिन लगता है। तो जैसे कि हम बायर को सिर्फ प्रीमियम पे करता है, बट सेलर जो है वो पूरा मार्जिन भी पे करता है। समथिंग कॉल्ड एज एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, वन एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी उससे हम रिकवर करते हैं। तो हम उसे करीबन 6 to 7% मार्जिन लगाते हैं सेलर को, क्योंकि सेलर का लॉस जो रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। प्रॉफिट सिर्फ उसको जो प्रीमियम जो बायर देता है वो मिलता है, बट लॉस अनलिमिटेड है, इसलिए सेलर को पूरा मार्जिन लगता है। So in that case, when we were talking about the liquidity, is that holding the liquidity in the options? लिक्विडिटी अगर आप देखो तो लिक्विडिटी इज डेफिनेटली देयर इन ऑप्शन, स्पेशली जब भी गोल्ड वॉलेटाइल होता है तो सबसे ज्यादा लोग ऑप्शंस की तरफ ही मुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कम प्रीमियम पे, मतलब बायर्स मतलब कम मार्जिन पे, क्योंकि फ्यूचर्स का मार्जिन बढ़ जाता है तो ऑप्शंस में उनको करीबन 2% पे प्रीमियम पे करके उनको एक्सपोजर मिलता है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस बिकम मोर लिक्विड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हेनेवर गोल्ड इज मोर वॉलेटाइल, तब हम ऑप्शंस पे दिखा जाता है। Over to you, आशीष भाई। सर मैं यहाँ पे एक चीज, सॉरी, अभी तक हम लोग सोने के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे संजय अग्रवाल जी है, हु इज आवर सिल्वर पैनल हेड,
उनको सिल्वर के बारे में, हेजिंग के बारे में कुछ पूछना है। संजय भाई प्लीज। हाँ, मैं नितिन गड़िया जी से पूछना चाहता हूँ कि सर अभी जैसे सिल्वर लॉकडाउन के पहले सिल्वर 48 चल रहा था फिजिकल में, फिर उसके बाद में वो अचानक 38 हो गया और इस समय वो 67 चल रहा है। तो इतना ज्यादा जो सिल्वर का जो वेरिएशन है जो गोल्ड से बहुत ज्यादा है, गोल्ड का वेरिएशन और सिल्वर के वेरिएशन के रेशियो में बहुत ज्यादा फर्क है, तो उसका सिल्वर का कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है वो मुझे समझना है। सर सिल्वर में भी ऑप्शन ट्रेडिंग एमसीएक्स के अंदर अवेलेबल है 30 kg के लॉट की, तो हम ऑप्शन बाय करके या स्ट्रैटेजीज बना के उसको कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरा रिस्क जो है वो प्राइस इंक्रीज को लेके है, तो मैं कॉल बाय करके कर सकता हूँ। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड है जिनका करीब 10 टन के आसपास का एक्सपोजर छूटा हुआ था, तो फिर हमने क्या किया, हमने 10 टन का पुट बाय कर लिया है नीचे में। तो अब जब नीचे में हमने पुट बाय कर लिया, भाव ऊपर जा रहा है तो चैन की नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आता है तो आपका पैसा मिल ही जाएगा। सोने पे सुहागा, मतलब और चांदी जिसको कहते हैं, वो ऐसे हो गई कि विक्स जब उन्होंने किया था तो नीचे थी, आज विक्स बढ़ गई है, तो बढ़ने से पुट का प्रीमियम कम होना चाहिए, तो विक्स बढ़ गई। जैसा अभी गौरी जी ने दिखाया था कि विक्स भी एक फैक्टर है। तो जो 1000 रुपए में हमने ऑप्शन लिया था 60,000 की स्ट्राइक पुट का, वो आज 1400 रुपए हो गया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें संजय भाई जो चारों स्पीकर थे उन्होंने एक बात दोहराई है कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। सर ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये होम्योपैथिक दवाई सरी की, अगर 100 लोगों को बुखार है तो 100 लोगों को अलग अलग 100 प्रकार की मेडिसिन लगेंगी। ये एलोपैथी नहीं है कि आपको 100 को बुखार है तो सबको क्रोसिन दे दिया। मेरा अगला क्वेश्चन यही था दोनों नितिन जी को, कि हमने तो ये सब समझ लिया, लेकिन ये कॉमन ज्वेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के बस की बात नहीं है। तो अगर किसी को ये अपने को सेफगार्ड करना है हेजिंग करके, तो व्हाट इज द बेस्ट वे दैट ही कैन गो अहेड? उसे अकाउंट खोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? अगर ब्रीफली अगर दोनों आपको ये बता सकेंगे, तो जो अभी तक शुरू नहीं कर रहे वो किस चीज से शुरू कर सकेंगे, वो आप बता। देखिए मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अभी इनसे संपर्क में आ रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं आपसे लोगों से एक बताना चाहता हूं, यहाँ जितने भी चारों पैनलिस्ट हैं, इन लोगों के इस माइंड स्पीक के अलावा पूरे अलग अलग वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चारों के नंबर सबके साथ शेयर कर दे, क्योंकि ये रोज का काम है। 50 स्ट्रेटेजी बनती है, और जैसा कि हमारे अशोक भाई बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रियली द एब्सेंस ऑफ द आइडिया का एब्सेंस होता है। 10 ज्वेलर्स अगर लॉस में है तो हर एक की नीड अलग अलग है, हर एक का प्रॉब्लम अलग अलग है। तो जब आप इनसे पर्सनली बात करेंगे, और मैं एक इन लोगों को सजेशन भी दूंगा और इन लोगों से एक गुजारिश भी करूंगा। आज जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग, हमारे पास बारकोडिंग के स्पेशलिस्ट है, हमारे पास में सुपरवाइजर के लोग हैं, हम बहुत टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो नेशनल स्किल में दे रहे हैं, किसी में दे रहे हैं। अविनाश जी, हमको एक हमारे जीजेसी के तरफ से या किसी भी प्लेटफॉर्म से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हर एक के शोरूम में एक पर्सन ऐसा हो जो ये सारे स्ट्रेटेजी को समझो। हम लोग जिस एज में आ गए, जिस तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो जाता समझना, या तो जिनके यंग बच्चे बिजनेस में आ रहे हैं, या फिर वो एक ऐसे लोगों को डिपिट करे जो आदमी पूरी स्ट्रेटेजी फाइनल करे। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा आशीष जी, लेकिन स्कॉशिया बैंक से लेके जितने बैंक के बेस्ट जो एम्प्लॉय थे ना, वो सारे लोग अभी साउथ के जितने बड़े क्या बोलते हैं हाउसेस है, सबके अंदर वहां के लोग हैं, और अच्छे पे स्केल पे, लेकिन उनका जितना बड़ा वॉल्यूम है उससे ज्यादा वो लोगों को फायदा हो रहा है उन लोगों से। तो अब नीड ऑफ द आवर ऐसा हो गया कि हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी वाला हमारे शोरूम के अंदर एक प्लानर अपॉइंट करना पड़ेगा, अदर देन आवर मैनेजमेंट और सब। आई थिंक मेरी बात से अशोक भाई, अविनाश जी सब एग्री होंगे, और उसकी जो ट्रेनिंग है और उसके जो क्लासेस है वो इन लोगों से हम ले सकते हैं, इन लोगों के साथ में उसकी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो अदर वे टू डू द समथिंग रॉन्ग। कोई भी गलत तरीके से सही काम आप कर ही नहीं सकते। मैं नितिन जी से ज्यादा जानना चाहूंगा, केडिया जी से। नितिन भाई, केडिया जी, आप बोलने के पहले मैं बिफोर यू स्टार्ट, आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू ऑल द पैनलिस्ट, एंड देन यू कैन स्टार्ट along with answering my question. ये सुनने में या समझने में हेजिंग ऑप्शंस और फ्यूचर्स अच्छा लगता है, लेकिन सब ज्वेलर्स को क्या केयर रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब ये करते हैं कि उनको उसमें नुकसान ना हो?
मैं नितिन जी केडिया से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से। आप सब लोगों को मेरा दरख्वास्त है कि इसको जब तक कि आप एक 100 ग्राम 10 ग्राम के साथ में जब तक ये पुट और कॉल को आप नहीं करेंगे पर्सनली, और हम इतने सब स्पेशलिस्ट से लेक्चर सुनते रहेंगे, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, इट इज लाइक अ लर्निंग स्विमिंग बाय द टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द ऑनलाइन। और वो आप जब तक के पानी में नहीं उतरेंगे, यू कांट लर्न टू स्विम। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि 100 ग्राम में क्या फर्क पड़ने वाला, इतनी रिस्क लिया, थोड़ी रिस्क और लीजिए, इसको करिए पुट और कॉल ऑप्शंस को ट्रेडिंग उसके अंदर। ओवर टू नितिन जी केडिया। सर आपने जैसे बोला कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें साथ में ध्यान रखने चाहिए। सर इसमें सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आज अगर मैं हेजिंग कर रहा हूँ तो क्या अगर कल को भाव 60,000 हो जाता है या 65,000 हो जाता है या 55,000 हो जाता है, तो अगर मेरा कैश फ्लो मुझे सपोर्ट नहीं करता है तो हाउ आई एम गोइंग टू जनरेट दैट कैश फ्लो। बिकॉज हेजिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सर, वो प्रॉब्लम लीनियर टाइम पे नहीं आता है, और प्रॉब्लम जो आता है वो वोलेटिलिटी में आता है कि मैंने 40,000 पे गोल्ड बेचा और आज वो 53,000 हो गया। 5 किलो गोल्ड के पीछे मुझे 65 लाख रुपीस का मार्क टू मार्केट बनना है, और दुकान चल नहीं रही है, कस्टमर आ नहीं रहा, मैं कहाँ से दूंगा। तो अगर वो सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है कि बॉस मेरे को पता है कि मेरे पास 35 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, तो मुझे फिर 2 किलो ही फ्यूचर के साथ करना चाहिए, और बाकी मुझे चूंकि मुझे पता है कि ऑप्शंस जो है वो मुझे कैश फ्लो में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो मुझे ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। और जो मैं सेकंड पॉइंट रखना चाह रहा था, जो नितिन सर ने अभी बोला, उसी में मैं ऐड करना चाह रहा था कि मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ, जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया कि अगर आप लोग एक पैनल बनाओ 2-3 लोगों का, उसमें जो भी ज्वेलर्स को भाव से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है हेजिंग करने में, वो अपना प्रॉब्लम आपको भेजें। आप एक क्वेश्चन मुझे दिन में भेजो, मैं उस एक क्वेश्चन का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोग को भेजूंगा, और वो आगे जाएगा, ताकि लोगों क्या होता है कई बार, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, पर जब वो वीडियो रिपीटेड वे में देखेंगे तो वो उनका पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और हमें भी पता चलेगा कि see 4-5 things we know that this thing is happening। तो ऑन द ग्राउंड जब हम जाएंगे तो हमें और भी ज्यादा चीजें पता चलेंगी, तो ऑन द ग्राउंड हमें कनेक्ट होने का एक मौका मिलेगा। और तीसरी बात जो आपने बोला था स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सर इट इज वेरी सिंपल टू स्टार्ट। आज की डेट में आप सिर्फ आपका आधार कार्ड दे दीजिए, आपके आधार बेस्ड केवाईसी होती है, आपका 3 ओटीपी आते हैं आपके पास, आधे घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करके 100 ग्राम, जैसे नितिन सर ने बोला, हार्डली उसका प्रीमियम 5,000 या 6,000 रुपए आता है। यू कैन स्टार्ट विद 5,000 6,000 रुपीज, मैक्सिमम 10,000 रुपीज, और वो स्टार्ट करके यू कैन स्टार्ट गेनिंग योर एक्सपीरियंस। आइदर यू कैन से दैट यू हैव पेड दिस एज अ लर्निंग फीस और समथिंग लाइक दैट, बट दिस 100 ग्राम इज ट्रेडिंग इज अ ब्रिलियंट आइडिया गिवन बाय नितिन खंडेलवाल सर, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड फॉलो दैट। थैंक यू। I have one question, Ashmi bhai. हाँ, एक मिनट, उनका एक पॉइंट एक बार खत्म होने तक बाद में क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। आई एम डन सर, आई एम डन। गौरी शंकर जी, योर क्लोजिंग कमेंट्स। Well, I think like Khandelwal sir has rightly said that one must understand the product by probably participating in directly by at least one contract, and there are other aspects also which I think we could not we could not cover in this time, yes. Like concepts like delta theta, which are very much important while trading in options, क्योंकि टाइम डिके रहता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और in my closing remarks I want to say that I see a concern expressed across even in the Q&A chat or आपके questions में भी, that there is a liquidity concern करके। I just wanted to share that at NSE we had more than 500 kgs of open interest in just this 1.5 month product, and then we see daily trading of almost 1,000 kgs. So that way it's really liquid, or market makers हैं, so you need not really be concerned, worried that much. But what you should be focusing on the aspects like delta and theta for trading. So जरूर उसके ऊपर जो नॉलेज है उसके ऊपर बढ़ाएं, फिर ऑप्शंस एक बार ट्रेड करें, और द बेस्ट वे इज ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली प्रैक्टिकली एक लॉट करके ही आप सीख सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। हितेश जी, हितेश भाई। ओके, सो मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि
पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके स्टार्ट करिए, सीखिए। 3 फेजेस में आप सीखेंगे कि कोई चीज में जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा, ट्रेड जब आपका ओपन रहता है जिसको जर्नी ऑफ ट्रेड बोलते हैं तब क्या होगा, और आखिरी में सेटलमेंट्स कैसे होते हैं। ये तीनों फेज आप छोटा छोटा करके स्टार्ट करिए और फिर डेफिनेटली आप स्केल अप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करिए, बिल्कुल प्रोग्रेस आपको साथ में रहेगी फ्रॉम माय साइड। आशीष जी, काफी मैसेज आ रहे हैं इस पे कि स्टिल कंफ्यूजन, और मुझे पता है ये इतने आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जितने चारों पैनलिस्ट हैं इनके रोज सेमिनार वेबिनार होते हैं। 90% वो अनपेड होते हैं, कोई पेड होते हैं, और डजंट मैटर। जब इतने बड़े बिजनेस में काम करते हैं, पेड में जाना है अनपेड में जाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि ये चारों लोगों के जब भी सेमिनार होते हैं, सर आप हम लोगों को इत्तला दीजिए। हम माइंड स्पीक के हमारे 6 व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसके अंदर आप लोगों के वेबिनार्स के लिंक शेयर कर लिया करेंगे, ताकि हमारे जो माइंड स्पीक के लर्नर है, लिसनर है, वो कम से कम इसका 5-10 आप लोगों के सुनते रहेंगे। क्योंकि मैं आप तीनों चारों को तो रोज ही देखता हूँ कि आपके कहीं ना कहीं के वेबिनार होते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा और वो अपग्रेड होंगे। क्योंकि हमारे आशीष जी जो हरदम बोलते हैं कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल ऑफ द गेम एंड देन प्ले इट। तो पहले रूल्स समझना जरूरी है, उसके बाद ही उसको खेलना जरूरी है। थैंक यू सर। पूजा जी। जैसे कहा गया है कि लेकिन फर्स्ट जब तक आप खुद स्विमिंग नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। पर मेरी दरख्वास्त है सबसे कि जब आप हेजिंग करते हो तो आप प्योर हेजिंग कीजिए, ना कि सट्टे की तरफ चले जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब आप बाय करते हो फ्यूचर्स भी और भाव बढ़ता है, ओके, तो जब आपको काटना होता है सामने, फिजिकल के सामने, आपको लगता है भाव चढ़ रहा है, आप काटते नहीं हो, और फिर कोई न्यूज आती है और गिर जाता है, और फिर हम लोग गालियां देते हैं एक्सचेंजेस को कि इन लोगों ने भाव बढ़ा दिया, घटा दिया, इसलिए प्लीज सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस लगा के अपना प्योर हेजिंग ही कीजिए, ना कि स्पेकुलेशन। क्योंकि ये आपका बिजनेस रिलेटेड है, तो आप इसका बरोबर फायदा लीजिए, ना कि स्पेकुलेशन कीजिए इस पर। थैंक यू। दिल पे पत्थर और सिर पे बर्फ रख के काम करना पड़ता है। संयम भाई। Yeah, my question is to नितिन केडिया जी। नितिन जी, अभी कॉमिक्स का रेट आता है इनटू रुपी करके, इंडिया के अंदर एक भाव होता है और एमसीएक्स का एक रेट होता है। क्या एक बिजनेस के हिसाब से कॉमिक्स और रुपी को मल्टीप्लाई करके और जो टैक्सेस को मल्टीप्लाई करके अगर उधर खरीद के एमसीएक्स पे बेचा जाए और इसको महीने के अंदर अगर स्क्वायर किया जाए, तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी की कोई आसार है इसके अंदर? संयम जी, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, 3 एक्सचेंज वाले लोग हैं यहाँ पे, वो गला दबा देंगे मेरा। मैं बोलने वाला था ये भैया, ये ऑफ द लाइन है, ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात है। आर्बिट्राज वो देख लेंगे। I have a question to Mr. Hitesh. You have told that you are having an option to take a delivery or not. In case if I am buying a call option at say 52,000 rupees and it touches 52,000 rupees and it goes down or whatever it is, I have an option. So what is that? Can you just elaborate on that particular thing? If I don't want to take the delivery of the option which I have already bought by giving a premium, can you just elaborate on that? Certainly, sir. So ये थोड़े से अलग ऑप्शंस हैं जो जिनको बोला गया ऑप्शन ऑन गुड्स। सो मैंने आप ही का एग्जांपल एक्सटेंड करता हूं कि आपने 52,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन खरीदा है 500 रुपया प्रीमियम देके, मान लीजिए। सो जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब है आपने एक वादा किया है कि शायद मैं 52,000 पे खरीदूंगा, मगर कब खरीदूंगा? एक्सपायरी डेट पर खरीदूंगा, बीच में नहीं खरीदूंगा। बीच में खरीदने वाले ऑप्शन जो होते हैं उनको अमेरिकन ऑप्शंस बोला जाता है, और ये खरीदना वर्ड इज नॉट करेक्ट टू यूज, इट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइजिंग इन बिटवीन। तो इंडिया में जो है वो सिर्फ एक्सपायरी डेट पर खरीदने के वायदे वाले ऑप्शंस होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप ये वादा करते हैं कि 52,000 के भाव पे 500 रुपया प्रीमियम दे के मैंने वादा किया है कि शायद मैं खरीदूंगा। अब व्हाट डू यू मीन शायद मैं खरीदूंगा? अब मान लीजिए ये वादा आपने आज कर लिया है और एक्सपायरी डेट पर स्पॉट का भाव, गोल्ड स्पॉट का भाव 48 रुपए है, 48,000 रुपए है। मैं आपसे पूछूंगा, अविनाश जी आपने वादा किया था कि आप 52,000 में खरीदेंगे,
बट ये वादा कौन सा था? ऑप्शंस वादा था कि आप खरीदेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं खरीदेंगे, राइट? ओके, सो क्यों? क्योंकि आपके लिए 48,000 में जाके खरीदना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, सो ऑप्शंस इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां आप मना कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक समझने वाली बात है, एक्सचेंज ने ऑटो सिस्टम्स लगा रखे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम्स। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर स्पॉट का भाव आपकी कॉल की स्ट्राइक प्राइस से काफी कम है, स्पॉट का भाव अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस से काफी कम है, तो एक्सचेंज आपको बोलेगा देयर इज नो पॉइंट टू एक्सरसाइज इट। वो आपसे कभी पूछेगा ही नहीं कि एक्सरसाइज करिए। तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में। एक्सपायरी डेट पर जो चीज बाहर चले गई है, जो शायद खरीदने वाले के लिए सही नहीं रहेगा, वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। तो समझाने के लिए ऑप्शन है इस तरीके से। दूसरा एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करूंगा कि जैसा गौरी शंकर जी ने बताया था कि 3 तरीके के ऑप्शंस हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी। ये बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए ऑप्शंस इंडिया में लॉन्च हुए हैं। और इसमें इन द मनी ऑप्शंस जिसमें आपके पास अधिकार रहता है खरीदने का, अधिकार रहता है खरीदने का, उसमें आप मना भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम चीज आई है, ये दूसरे तरीके के ऑप्शंस में, इक्विटी ऑप्शंस में नहीं है कि इन द मनी ऑप्शंस में आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मैं नहीं खरीदना चाहता। सो इस तरीके इन द मनी होने के बावजूद कब होती है? हाँ सर, इन द मनी होने के बावजूद। सो वो 4 कैटेगरी में कर दिया है, इन द मनी, क्लोज टू मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी। सो ऐसा किसी और दिन बिल्कुल एक वेबिनार करेंगे और इसको करेंगे, बट ये बहुत ही अच्छा और थॉटफुल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। क्लोज टू मनी मतलब इन द मनी और आउट ऑफ मनी के बीच वाला जो पीरियड है तब के जस्ट 3 स्ट्राइक प्राइस जो अंदर चला गया है कॉल में, और 3 स्ट्राइक प्राइस जो बाहर रह गया है पुट में, 3 लेस एंड 3 अबव वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्लोज टू मनी बोला गया। उसमें भी आपके पास अधिकार है और इन द मनी में भी आपके पास में अधिकार है। आई थिंक वी हैव ओवरशॉट द टाइम। अशोक भाई 90 मिनट्स बोला था, इट्स ऑलरेडी 100 मिनट्स, बट थैंक यू। ओवर टू संजय भाई। एक मिनट। Ashok bhai, do you need to tell something? No, nothing. I have nothing. I'm listening. Okay. It's okay. संजय भाई मैंने अनम्यूट किया आपको। संजय अग्रवाल जी। हो गए। यस यस, मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, और मैं नितिन खंडेलवाल जी, नितिन केडिया जी, पूजा लाड़ जी, गौरी शंकर जी एवं हितेश सेठिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही सुपर सेशन किया, और आशीष पेटे जी ने बहुत ही सुपर इसका मॉडरेटिंग किया, और आप लोगों के आने से ये सेशन में 4 चांद लग गए, और ये सेशन अपने तरह का अलग ही सेशन हुआ है, जिसके अंदर की सारे पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिटी हुई है, सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए हैं, और मैं आप लोगों को माइंडस्पीक की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आशीष जी, ये तीनों पैनलिस्ट जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, MCX और NCDX और दूसरा BSE, तो ये तीनों एक्सचेंजेस ने हम लोगों को इनको प्रोवाइड किया है, तो हम तीनों एक्सचेंजेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और केडिया एडवाइजरी का भी देते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई अप्रिशिएट के संडे इवनिंग को भी 100-150 लोग हेजिंग जैसे सब्जेक्ट को सुनने के लिए बैठे हैं, उसके लिए थैंक यू। आशीष जी, इसको है ना यूट्यूब पे जब अपन अपलोड करते हैं ना, तो उसमें आजकल फॉलोअर ज्यादा होते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन ओपन हो गया, तो अभी लोगों के पास ये समय में समय नहीं होता है, तो उस पे फॉलोअर ज्यादा होते हैं। और मैं फिर से एक बार सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के जो भी सेमिनार होते हैं, आप लोगों हम लोगों को भेजिया करें, हम अपने माइंडस्पीक पे। और अभिनव जिंदल अगर यहाँ पे है तो काफी लोगों ने अपने नंबर दिए, उनको माइंडस्पीक ग्रुप के अंदर ऐड कर ले। अविनाश जी, इसकी रिकॉर्डिंग लोगों को, हाँ मैंने 1-2 लोगों को कर लिया, बाकी लोगों को हमको करना चाहिए। Done sir. Thank you everyone. Thank you.